evening to everyone. Myself, Rasika Patil, on behalf of Sathe College Science Association Junior College, welcomes all of you at today's guest lecture on career guidance. A warm welcome to our principal, Dr. Madhav Rajwade sir, Vice Principal, Dr. Dattatreya Nirkar sir, Vice Principal, Pramodini Sawant Madam, Assistant Principal, Vinod Gaware sir, Supervisor, Dr. Narendra Kishan sir, Supervisor, Anjali Samant Madam, Culture Head, Jayashri Gaikwad Madam, Cultural Coordinators, Gautam Tekle Sir, Samir Jadhav Sir, Shamla Gaware Madam, Shrikant Nehete Sir, all the teachers and my student friends. Friends, today is a very special day, that is 7th April. It's World Health Day and it is celebrated worldwide every year. As we all know, due to COVID pandemic, the whole world is affected and thus we all need to take care of our health. We have to prevent the spread of COVID-19 by cleaning our hands oftenly, maintaining safe distance from all and by wearing a mask. On behalf of Sathe College Association Junior College, we wish you all a happy World Health Day and hope we all are blessed with good health and very soon the world will get rid of this COVID-19. Friends, due to COVID pandemic this year, you all must have studied through online, attended various cultural, educational programs, and now appearing for exams. There might be so many questions in your mind regarding career choices. We live in a highly competitive era where all our career choices and our efforts determine the quality of our life in the future. The competition is increasing every day and has even engulfed the courses that once were called non-conventional. With this, the importance of proper career guidance and counseling cannot be overlooked. Today, students are expected to be clear about their dreams and the career path leading towards it. This creates a lot of pressure among students and their parents who find themselves in a dilemma while choosing the right career. Professional Career Guidance Service has come as a rescue for the students and parents. A good career guidance professional not only directs you towards your dream, but also gives you an end-to-end support in all the steps involved in it. With the number of colleges and prospective courses available, it is important that the student gets college and career guidance to find a better career. So, we have organized this guest lecture on career guidance on the subject Career Options for Commerce, Arts and HSBC Students. As a principal, Dr. Madhav Rajwade sir is busy with another important meeting at the same time. He won't be able to join us, but his encouragement and support is ever with us. We have with us our junior college supervisors. I would like to request a team member, Ms. Nidhi Shirke, to introduce to a speaker. Thank you. Thank you, Rasika. Some people make the world special by just being in it. Today, we have one of them with us. It's a great privilege to me to introduce our guest of honor and speaker of our today's guest lecture, Sri Santosh Karle Undangaonkar sir. Though sir's CV is quite lengthy and is very difficult to read out all his achievements, I will brief you about some of those, as you all must be keen and excited to hear from sir. Sir has completed his MA in Economics. He has given more than 1,200 lectures on career guidance throughout Maharashtra. Sir has given various career guidance lectures in educational fair organized by Lokmat and Sakai. Sir has also worked as guide in vocational guidance training programs, which was organized for teachers by SCERT Pune. Sir's career guidance lectures were also broadcasted on Aurangabad and Pune radio stations. Really, we are fortunate to have you, sir, with us. Now, I would request our audience to keep their mics muted and also to put their career-related questions in chat box, which will be addressed later in a question and answer session. Now, I would like to request Sri Karle, sir, to guide us. Good evening. मैं संतोष कारले, जो तावड़े मैडम से कम्युनिकेशन हुआ कि हमारे कॉलेज में करियर गाइडेंस का लेक्चर ऑर्गेनाइज करना है। पहले एक सेशन एक वीक हो गया, साइंस के लिए करियर गाइडेंस का लेक्चर हुआ। जब उन्होंने कहा कि आप लोगों को कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे के लिए करियर गाइडेंस ऑर्गेनाइज करना है,
जो कल्चरल फील्ड के हिसाब से बात करने के बाद आज के डेट डिसाइड हुई, जो साटे कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, साटे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर माधव राजवाड़े सर, वाइस प्रिंसिपल दत्तात्रेय नेरकर सर, प्रबोधिनी सावंत सर, सावंत मैडम, विनोद गवारे सर, नेरकर सर और अंजलि सावंत मैडम और अदर टीचर, और जिस ये प्रोग्राम का कम्युनिकेशन आपके साथ हो रहा है वो मेन जो मैडम है तावड़े मैडम, तो जैसे अपने पास कम्युनिकेशन हुआ, जो आज कार्यक्रम जो रखा है कार्यक्रम ऑनलाइन, और ये करियर गाइडेंस में बच्चे जो इन्वाइट हुए और पेरेंट्स इन्वाइट हुए उनको मेरी तरफ से नमस्ते। पहली बात यह है कि मैं कम से कम 15 तो 20 साल से इसमें फ्यूचर में काम करता हूँ करियर गाइडेंस के इसमें। जब मैं एजुकेशन रिलेटेड मेरा बिजनेस था, जब मैं घूमता था, जब बच्चे और पेरेंट्स में जो कम्युनिकेशन होता है कि बाद में उनको करियर में जो दिक्कत आती थी उसका मैंने सवाल का आंसर ढूंढने का कोशिश किया है। सही बोलो तो मेरा जो सब्जेक्ट रहता करियर के बारे में, ज्याला मराठीमध्ये म्हटलं जातं चाकोरी बाहेरील शिक्षणाच्या संधी, जो अपने कॉलेज में अपने क्लास में जो कंटिन्यू आपको बताया जाता है कि जो अपने को मालूम रहता है उसके बारे में बताया जाता है कि इसमें करियर करना है, लेकिन वही सुन के फिर लेकिन उसके बाद में जब करियर पूरा डिग्री होता है, बाद में जॉब करते हैं, फिर बाद में मालूम गिरता है कि मेरे को 10वीं या 12वीं के टाइम में मेरे को मालूम गिरता तो मैं इसमें करियर चॉइस कर सकता था। लेकिन सही बोलो तो मैं आंकड़ेवारी में करियर के चांसेस कितने मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। थोड़ा अभी साइंस के रिलेटेड मैं पूरा ऑल ओवर करियर ऑप्शंस कितने मैं क्लियरिटी कर देता हूँ। सही बोलो तो 10वीं के बेस के ऊपर 110 डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, साइंस में देखो तो 200 ब्रांचेस है, कॉमर्स में देखा जाए तो 150 ब्रांचेस है, आर्ट्स में अगर करियर करना चाहते हैं तो 350 सब्जेक्ट में अपन आर्ट्स में करियर कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट में अपने को सिर्फ एमबीए मालूम है, लेकिन एमबीए कितने सब्जेक्ट में मालूम है, सिर्फ मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर, लेकिन एमबीए टोटल 47 ब्रांचेस में अपन एमबीए कर सकते हैं। उसके बाद में अगर जर्नलिज्म में जा सकते हैं, जर्नलिज्म में अपने को 2 ब्रांच है, 2 शाखा है, एक है प्रेस मीडिया और एक इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। अगर प्रेस मीडिया में कौन बच्चा जा सकता है, कौन स्टूडेंट जा सकता है, आज कार्ले सर का ऑनलाइन लेक्चर है करियर गाइडेंस के बारे में, अगर साथ में अगर आप नोटबुक और पेन लेके बैठते, कार्ले सर क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी बताते हैं, अगर वो अच्छे तरीके से लिख सकता है तो सही बोलो तो प्रेस मीडिया की तरफ जा सकता है। अगर कोई भी अपने साटे कॉलेज में कोई भी एक घटना घटती है या कोई भी इश्यू होता है, जब चर्चा होती है लेकिन इश्यू इतना छोटा होता है तो बाद में उसको थोड़ा सा ज्यादा तो काय म्हणतात त्याला मराठीमध्ये तेल तिखट मीठ सांगून दिला जातं, ते वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जा सकते हैं। लेकिन जर्नलिज्म में कितने शाखा है, टोटल 18 शाखा है। अगर फोटोग्राफी में अगर करियर करना चाहते हैं तो उसमें कम से कम 16 तो 17 ब्रांचेस है। उसके बाद में अगर लॉ में अगर करियर करना चाहते हैं तो 44 ब्रांचेस लॉ में हैं और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी करियर के बारे में है। जब आप 10वीं पास हो गए, 10वीं पास होने के बाद सही बोलो तो बॉम्बे में, मुंबई में या पुणे में जो कॉर्पोरेट सिटी है वहां ज्यादा करके कॉमर्स में ज्यादा फील्ड में बच्चे जाते हैं। लेकिन कॉमर्स करने के बाद सिर्फ अपन को यह मालूम रहता है कि 12वीं कॉमर्स होने के बाद एक तो सीए करना, आईसीडब्ल्यूएस करना या सीएस करना या बीकॉम करना, उसके बाद में आगे क्या करना है, लेकिन वो प्लानिंग बनाता नहीं। लेकिन पहली बात यह है कि करियर प्लानिंग होना जरूरी है। करियर प्लानिंग ऐसी होना जरूरी है कि अगर मैं 12वीं कॉमर्स पास एग्जाम दे रहा हूँ, 12वीं कॉमर्स होने के बाद अगर मैं सीए क्रैक नहीं कर सकता है, सीएस नहीं क्रैक कर सकता है, तो उसके अलावा और कौन कौन से करियर ऑप्शन है, ऐसे 10 ऑप्शंस निकालना जरूरी है। लेकिन अगर करियर अच्छा जिंदगी में करना चाहते हैं तो जिंदगी में पीछे मोड़कर जरूरत नहीं रहेंगे, ऐसा करियर चॉइस करना जरूरी है। लेकिन सही बोलो तो जैसा साइंस के लिए नीट है, जेडब्ल्यू, सीईटी है, फिर कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए और ज्यादा कौन से अपॉर्चुनिटी है, उसके वास्ते कौन कौन से इंट्रेंस एग्जाम है। जैसे साइंस के बच्चे के लिए नीट, जेडब्ल्यू, सीईटी होता है, तो कॉमर्स के लिए कोई इंट्रेंस एग्जाम है क्या अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए? ऑल इंडिया लेवल पे अगर जाना है, ऑल इंडिया लेवल के इंस्टीट्यूट में अगर करियर चॉइस करना चाहते हैं, उसके वास्ते कौन सी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो अपने को चॉइस करना जरूरी है। तो सही बोलो तो
आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे को के लिए बहुत सारे इंट्रेंस एग्जाम है, अभी दे सकते हैं, अभी उनके फॉर्म निकल चुके हैं, अभी उसका एप्लीकेशन फॉर्म भर के आने वाले उसके एग्जाम देने के लिए अपने को प्रैक्टिस करना जरूरी है, और एग्जाम क्रैक करने के बाद अपने को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये कहने का मतलब है मेरा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि इंट्रेंस एग्जाम है बहुत सारे, फिर इंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से है, अभी कौन कौन से फॉर्म निकल चुके हैं, फिर उसको अपने को थोड़ा स्टडी करना जरूरी है। तो उसके वास्ते कौन सा सिलेबस होता है, उसके बाद में उसके क्वेश्चन पेपर कैसे होते हैं, वो उसके वो एग्जाम देने के बाद अपने को कौन कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है, वो भी अपने को देखना जरूरी है। उसके वास्ते सिलेबस कौन कौन सा है ये भी देखना जरूरी है। तो फॉर एग्जाम्पल अपन इंट्रेंस एग्जाम के साथ शुरू करेंगे, लेकिन आपको सीएस के बारे में मालूम है, उसके बारे में मैं एक बात नहीं कहूंगा, लेकिन जिंदगी में वो करियर जो है अभी तक मालूम नहीं, उसके रिलेटेड मैं बताने वाला हूँ। एक है अभी जो फॉर्म निकल चुका है, उसके सही बोले तो 31 मार्च लास्ट डेट थी, लेकिन एक महीना और 30 अप्रैल उसकी लास्ट डेट हो चुकी है। वो इंट्रेंस एग्जाम का नाम है क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये 150 मार्क की इंट्रेंस एग्जाम है। अगर ये देते, क्वालिफाई होते, अच्छे नंबर लाते, अच्छा अगर रैंक लाते हैं, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अपनों को एडमिशन मिल सकता है। अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन मिलता है तो नेशनल यूनिवर्सिटी इंडिया में टोटल 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। फॉर एग्जाम्पल हर स्टेट में एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, लेकिन महाराष्ट्र में 3 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। एक है मुंबई में, दूसरा है औरंगाबाद, तीसरा है नागपुर में। लेकिन हर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में इंटेक कैपेसिटी सही बोलो तो महाराष्ट्र में सिर्फ 60 की इंटेक कैपेसिटी। अगर इसके अलावा अगर महाराष्ट्र में लॉ करना चाहते तो महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र की सीईटी अलग होती है, एमएस-सीईटी एलएलबी की 5 ईयर के 12वीं के बाद में। अगर ये देते महाराष्ट्र के पूरे जो कॉलेजेस है वो हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग आता है, वो एडमिशन प्रोसेस उनके तरफ से होती है, लेकिन उसका इंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो महासीईटी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फिर बाद में उसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसके एमएस-सीईटी को लॉ की सीईटी देने के बाद महाराष्ट्र में जितने भी कॉलेजेस है अपने को लॉ में आप जा सकते हैं। उसके बाद में ऑल इंडिया लेवल की एलसेट है। अगर ऑल इंडिया लेवल पे जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी जो है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू यूनिवर्सिटी है, सयाजीराव गायकवाड़ अहमदाबाद के, बड़ौदा की नेशनल यूनिवर्सिटी है, वहां अगर लॉ के लिए एडमिशन लेना चाहते तो एलसेट बोल के एग्जाम होती है। अगर वो देते, क्वालिफाई होते तो अच्छा करियर नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल यूनिवर्सिटी से अगर मिलता है तो बेटर, बहुत अच्छा करियर होता है। उसके अलावा क्लैट के बेस के ऊपर, एलसेट के बेस के ऊपर एक इंडियन आर्मी लॉ स्कूल है, वो है हरियाणा में। वहां अगर जाना चाहते तो वहां का फ्यूचर बहुत अच्छा है। अगर वहां से एलएलबी पास आउट होते तो अपने को आर्मी लॉ स्पेशलाइजेशन वहां करने के बाद अपन डिफेंस के लिए इसमें अपन जा सकते हैं। डिफेंस में अच्छा करियर, डिफेंस लॉ जो है उसमें अगर करियर चॉइस करते हैं तो अपने को डिफेंस में इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी में अपने लॉ ऑफिसर आप जा सकते हैं। उसके अलावा अगर मैथ अगर 12वीं में है या आर्ट्स में मैथ है, मैथ के रिलेटेड में कोई इंट्रेंस एग्जाम बताने वाला हो, अगर वो नेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है तो बेटर, बहुत अच्छा करियर हो सकता है। एनआरटीआई बोल के एक इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, एनआरटीआई नेशनल रेलवे ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट। ये सही बोलो तो 3 साल हो गए यूनिवर्सिटी शुरू होने से। वो है गांधीनगर में, बड़ौदा में। वहां 2 ब्रांचेस हैं, एक है बीएससी इन द रेलवे ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी और दूसरा ब्रांच है बीबीए रेलवे ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट बोल के। वो कुल मिला के 110 इंडेक कैपेसिटी है। अगर वो इंट्रेंस एग्जाम देते, क्वालिफाई होते हैं, अगर वहां एडमिशन मिलता है तो अपने को फ्यूचर में रेलवे इंडस्ट्री में, प्राइवेट में, वहां प्राइवेटाइजेशन में आप बिजनेस में जा सकते हैं। उसमें वहां भी पीजी है, आप एमबीए पे कर सकते हैं या ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में एमटेक भी कर सकते हैं। वो फ्यूचर उससे रिलेटेड है। वहां अगर वो एग्जाम क्वालिफाई होते हैं, मेरे 4 बच्चे एनआरटीआई में गए, बहुत टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है। और वो यूनिवर्सिटी का खासियत ऐसी है, एक है यूरोप यूनिवर्सिटी, अब्रॉड की यूनिवर्सिटी यूरोप की है और एक फ्रांस की है। वो दोनों यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन में है, क्योंकि वो वहाँ की टेक्नोलॉजी आने वाला फ्यूचर में अपनों के इंडिया में काम आएंगी। उसके बाद में अभी आने वाला फ्यूचर रेलवे डिपार्टमेंट में जो है
अभी तो मेट्रो चले, बुलेट ट्रेन आने वाली है, वो हिसाब से आने वाला फ्यूचर उसमें बहुत ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटी देने वाला। उसके अलावा एक ISI बोल के इंस्टीट्यूट है, ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कलकत्ता। यहाँ अगर अपने को BSc इन मैथमेटिक्स या BSc स्टैटिस्टिक्स में अगर एडमिशन मिलता है, वहाँ अपने को स्टाइपेंड मिलता है। महीने को 3,000 रुपए स्टाइपेंड अलग से और प्रोजेक्ट के लिए 3,000 रुपए स्टाइपेंड अलग से मिलता है। अगर वहाँ पास आउट होते हैं वहां से UG में, अगर PG वहां से पास आउट होते हैं, अपने को इंटर्नशिप करने की अपॉर्चुनिटी वहां मिलती है। जो राष्ट्रपति है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, प्लानिंग मिनिस्ट्री है, PMO प्राइम मिनिस्टर कार्यालय है, RBI है, नीति आयोग है, यहाँ अपने को ज्यादा अपॉर्चुनिटी वहां मिलती है। उसके अलावा अगर इकोनॉमिक्स में करियर करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ब्रांचेस है, अलग अलग है। अगर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। मैं यहाँ एक उदाहरण में पेश करना चाहता हूँ। एक औरंगाबाद में एक मेरा प्रोग्राम था, 10वीं के बच्चे थे, 9वीं और 10वीं के बच्चे। 10वीं के बच्चे ने मेरे को एक सवाल पूछा था, सर करेंसी पे सिग्नेचर करने का अधिकार मेरे को कैसा मिलेगा और उसके वास्ते क्या एजुकेशन लेना पड़ेगा। देखो 9th क्लास का बच्चा, उसकी मेमोरी देखो, उसकी निरीक्षण क्षमता देखो, उसका विजन देखो क्या है। अपने को ऐसा बच्चों को विजन रखना जरूरी है कि अपने को आने वाला फ्यूचर क्या में है, वो हिसाब से अपने को चलना है। बहुत सारे बोलते हैं कि सर इसमें जाने के बाद अपने को स्कोप क्या है। स्कोप जो है हर फील्ड में स्कोप है, लेकिन आज का अपने को ऊपर टैलेंट है कि अपने को काय में इंटरेस्ट है, उस हिसाब से अपने को जाना जरूरी है। लेकिन करना है तो दिल लगा के, मेहनत करके, कड़ी मेहनत, हार्डवर्क करके अपने को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलना जरूरी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स नाम की इंस्टीट्यूट पुणे में, वहाँ 2 साल से BSc इकोनॉमिक्स अब जो ब्रांच ओपन हुई, उसमें सिर्फ 130 बच्चे लेते हैं हर साल। लेकिन सही बोलो तो ऑल इंडिया लेवल के फिर सिर्फ 90 बच्चे लेते हैं, 90 बच्चे लेते हैं। बाकी के 40 बच्चे जो है, 10 बच्चे जो जम्मू कश्मीर के बच्चे के लिए हैं और 30 बच्चे सिर्फ तेलंगाना गवर्नमेंट जो है वो पूरा 30 बच्चे का प्रोवाइड करते, प्रोदान करते, उनका पूरा खर्चा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चे के लिए पूरा 30 बच्चों को वहां एडमिशन मिलता है। लेकिन अपने वास्ते ऑल इंडिया लेवल पे सिर्फ 90 बच्चे वहां एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन वहां से अगर BSc इकोनॉमिक्स पास आउट होते हैं, उसके बाद में अगर PGD, ISI या गोखले या IGIDR, इंदिरा गांधी अनुसंधान डेवलपमेंट रिसर्च, यहाँ से अगर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर करते हैं तो फ्यूचर में जिंदगी में अपने को वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वह टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट है। गोखले में से भी इंटर्नशिप, सही बोलो तो गोखले के वाइस चांसलर जो सर है वो नीति आयोग के डायरेक्टर है। अगर वो सही जो गोखले इंस्टीट्यूट है वो आगरकर सर ने स्थापन की है, वो 1942 में, सही बोलो तो बहुत पुरानी इंस्टीट्यूट है। उसके बाद में जो है दूसरी जो अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मेरे को MBA करना है, लेकिन MBA करना चाहते तो पहले ग्रेजुएशन करना जरूरी है। हाउ एनी ग्रेजुएशन होने के बाद MBA करना चाहते तो IIM का सपना देखिए। IIM में से अगर पास आउट होते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से, लेकिन ग्रेजुएशन के बेस पे और अपनों को कैट देना पड़ती, कैट देने के बाद क्वालिफाई होने के बाद वहां का भी परसेंटाइल जो है कम से कम 98 परसेंटाइल प्लस होना जरूरी, तो अपने को IIM में एडमिशन मिल सकता है। लेकिन अपने हिंदुस्तान में पूरे IIM जो है टोटल 28 IIM है, लेकिन दो IIM ऐसे है, एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक। ये दोनों इंस्टीट्यूट में इंटीग्रेटेड MBA 5 साल है, उसको इंडियन प्लानिंग मैनेजमेंट उसको दिए हुआ है। उनके फॉर्म निकल चुके हैं, अभी फॉर्म भर सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसका आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप IPM के इंट्रेंस एग्जाम की आप प्रिपरेशन करिए। प्रिपरेशन होने के बाद होगा एग्जाम क्रैक करते, क्रैक होने के बाद अपने को वहां का इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू होने के बाद अपने को ग्रुप डिस्कशन में आपको आना जरूरी है। ग्रुप डिस्कशन होने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, प्रोजेक्ट के बेस के ऊपर सिलेक्शन होता है। तो लेकिन वहां की हर इंस्टीट्यूट की इंडेक्स कैपेसिटी कम से कम 100 है।
अगर यहाँ एडमिशन मिलता है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर IIM का आपको लेवल मिलता है, कम से कम 20 से 40 लाख तक प्लेसमेंट वहां से मिलता है, हर साल का पैकेज वहां का है। अभी मेरा स्टूडेंट जो है अभी लखनऊ में है, अभी IIM अभी IPR है, अभी ओला ने उसको कम से कम 28 लाख का पैकेज दिया कि वहां का नेशनल इंस्टीट्यूट IIM जो है बहुत टॉप लेवल का MBA वहां से पास होता है। अगर उसके अलावा उसके बाद में IIT, अब तुम बोलेंगे सर IIT तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी, हमारे कॉमर्स या साइंस के बच्चे या आर्ट्स के बच्चे के लिए IIT का क्या संबंध है? बराबर है, लेकिन IIT हिंदुस्तान में टोटल 30 है, लेकिन 30 IIT में से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी मद्रास, यहाँ इंटीग्रेटेड MA 5 साल का कोर्स है। वहाँ है एक MA इकोनॉमिक्स, MA ह्यूमैनिटी और MA इंग्लिश। यहाँ से अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, अगर वहाँ इंटरव्यू में अपना सिलेक्शन होता है तो बेटर फ्यूचर में अपने को ह्यूमैनिटी में फ्यूचर में जो अपनी इंडिया के साथ परिषद है, उसके बाद में यूनेस्को जैसे अपने को प्रेजेंटेशन करने का अपने को चांस मिलता है। आने वाला फ्यूचर में जो ह्यूमैनिटी में जो PMO और राष्ट्रपति कार्यालय, वहाँ अपने को कम्युनिकेशन स्किल के बेस के ऊपर अपने को ज्यादा अपॉर्चुनिटी, इंटर्नशिप करने का अपने को अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट है। उसके बाद में भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है, जो मंत्रालय, वहां से वहां के इंस्टीट्यूट जो है, सही बोलो तो 6 जगह है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्वालियर में है, एक नोएडा में है, एक भुवनेश्वर में है और एक शायद कोचीन में है। वहां से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टूर्स एंड ट्रेवल्स इन द मैनेजमेंट, उनके भी फॉर्म निकल चुके हैं। अगर ये फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर इनके एग्जाम देते हैं, लेकिन वहां से अपनों को बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन द टूर्स एंड ट्रेवल्स इन द मैनेजमेंट में अपनों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। वहां से अगर पास आउट होते, लेकिन वहां से जाने के बाद अपने को प्लेसमेंट जो है, अपॉर्चुनिटी जो है, अपने को टूरिज्म मंत्रालय है, उसके बाद में इंडियन एयरलाइंस है, उसके बाद में इंडियन रेलवेज है, उसके बाद में है MTDC है, बहुत सारे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट है। वहाँ अपने को टूरिज्म इंडस्ट्री में अपने को ज्यादा अपॉर्चुनिटी, वहां से करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है कि बहुत सारी टूरिज्म में अपने को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन ये जो नया सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूट है, वहां से अगर पास आउट होते हैं तो अपने को अच्छा करियर हो सकता है। उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, सही बोले तो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंडरटेकिंग, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU के यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन प्रोसेस है तो UG के, ये NTA करता है। ये NTA एग्जाम कंडक्ट करता है। वो एग्जाम देने के बाद अपने को क्वालिफाई होते हैं तो कम से कम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर 212 ब्रांचेस है कि वहां से अपने को UG में एडमिशन मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अपने को अगर स्पोर्ट में जाना है तो BBA इन द स्पोर्ट मैनेजमेंट, वहां अपने को अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा अलग ब्रांच है, लेकिन मिलने वाला अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे तरीके से, आने वाला फ्यूचर उसमें अच्छा है। पूरे अपने को वर्ल्ड में अपने को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है देखा जाए तो। उसके अलावा JNU जवाहरलाल यूनिवर्सिटी भी, वहां से अपने को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो अच्छा ब्रांचेस वहां से अपन करते हैं, या अगर BBA भी करते हैं, या उसके बाद में जो इंडिया में का टॉप मोस्ट कॉमर्स कॉलेज है, श्रीराम कॉमर्स कॉलेज और श्रीराम कॉमर्स कॉलेज वुमेन्स, ये 2 कॉलेजेस है। वहां भी वो NTA के एंट्रेंस एग्जाम देने के वहां पर अपने को एडमिशन मिलता है। उसके अलावा अगर देखा जाए, जो डिजाइनिंग में करियर करना चाहते हैं, सही बोलो तो एक NIFT, भारत सरकार वस्त्र उद्योग मंत्रालय कि इनके ओर से एक NIFT इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग, इनके भी फॉर्म निकल चुके हैं। अगर यहाँ से एंट्रेंस एग्जाम देते, क्वालिफाई होते, तो अपने को फैशन इंडस्ट्री, लेकिन फैशन इंडस्ट्री में जो है तो एक तो अपरेल डिजाइनिंग है, उसके बाद में टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, फैशन डिजाइनिंग है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है कि, लेकिन वहाँ एडमिशन लेने के लिए उनका एंट्रेंस एग्जाम, उनका इंटरव्यू होने के बाद वहाँ सिलेक्शन होता है। फिर अपने को कायमी अपने को करियर अपॉर्चुनिटी लेना चाहते उसके ऊपर डिपेंड।
उसके अलावा जो महाराष्ट्र शासन जो है, महासीईटी सेल डिपार्टमेंट के, इनके ओर से भी कुछ सीईटी के अपॉर्चुनिटी है, सीईटी लिए जाते हैं। सही बोले तो अपनों को एक ही सीईटी मालूम है, एमएससी सीईटी साइंस के वास्ते है, लेकिन आर्ट्स कॉमर्स के लिए कोई सीईटी है क्या, वो भी देखने को जरूरत है। जो मैंने जो लॉ के लिए सीईटी बताया, उसके अलावा अगर होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट के लिए महाराष्ट्र का सीईटी अलग से होती है। जो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के जो होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, एक है बॉम्बे में, दूसरा है पुणे में, तीसरा है नागपुर में। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहां भी अपने को एडमिशन लेने के लिए होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, लेकिन बैचलर ऑफ डिग्री उसमें दो है, एक है केटरिंग टेक्नोलॉजी और होटल मैनेजमेंट। अगर अपने को नेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू एडमिशन मिलता है, जो इंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, जो नेशनल होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी जॉइंट इंट्रेंस एग्जाम, ये अगर देते हैं, क्वालिफाई होते हैं, तो अपने को एडमिशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग जो 12 इंस्टीट्यूट है, फॉर एग्जांपल जो महाराष्ट्र में सिर्फ दादर में है और एक गोवा में जो नजदीक जो जाते हैं, वहां से अगर पास आउट होते हैं होटल इंडस्ट्री में, होटल मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर में, अपनों को वहां से अपनों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये है नेशनल लेवल के इंट्रेंस एग्जाम। उसके अलावा अगर देखा जाए प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, अगर देखा जाए बहुत प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मैं फर्क नहीं दूंगा, लेकिन जो गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट है उसके अगर रिलेटेड आप अगर जाना चाहते हैं, इज बेस्ट ऑप्शन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट। अगर इसमें फॉर एग्जांपल अगर 12वीं आर्ट्स कॉमर्स है, हाँ उसके अलावा मैंने और एक बताना भूल गया, टीस नाम की एक इंस्टीट्यूट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, वो है मुंबई में। उसके ब्रांचेस है महाराष्ट्र में तुलजापुर में, उसके बाद में बेंगलोर में है, उसके बाद में नोएडा में है, दिल्ली में है। या अगर ये देखा जाए, यहाँ से अगर आप उनके इंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो वहां जो है बैचलर ऑफ सोशल वर्क एक ब्रांच है। अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, वो इंट्रेंस एग्जाम देते हैं, अगर एडमिशन मिलता है तो बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ BSW करने के बाद अपने को PRO की अपॉर्चुनिटी प्लेसमेंट मिलता है। अब PRO क्या होता है? PRO बोलो तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बोलते हैं। यहाँ से PRO अगर अपने को मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो अपने को जो इंडस्ट्री, जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है, जो वर्कर और मैनेजमेंट का जो बीच में का जो भाग रहता है, जो म्हणते त्याला जो मधला दुवा जो आहे तो आहे PRO। म्हणजे दोन्ही वर्करचा आणि मॅनेजमेंटचं कम्युनिकेशन जो स्किल डेव्हलप करतो तो म्हणजे PRO। तिथून स्टार्टिंग सॅलरी कमीत कमी 10 लाखापासून तर 50 लाखापर्यंत आहे। म्हणजे ते एक लेवलवरची इन्स्टिट्यूट, त्या पद्धतीने टीस मधून तुम्हाला ऑपॉर्च्युनिटी मिळू शकते, हे त्या लेवलवरचा अभ्यासक्रम। त्याच्यानंतरचा जर विचार जर केला, मुंबई विद्यापीठाच्या अंतर्गत एक मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट आहे की ज्या ठिकाणी तुम्हाला बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडी हा अभ्यासक्रम एक ठाणे कॅम्पसमध्ये विद्यापीठाचा आहे आणि त्याच्यानंतर आहे मुंबई विद्यापीठाच्या अंतर्गत। दोनों कैंपस में कम से कम 100 सीट है। वो इंट्रेंस एग्जाम देते हैं, एग्जाम होने के बाद अगर एडमिशन मिलता है, बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा पुंबा बोलेना यूनिवर्सिटी मास्टर ऑफ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो पुणे यूनिवर्सिटी के अंडरटेकिंग जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, यह BBA अभ्यासक्रम स्टार्ट हो चुका है। उसका इंट्रेंस एग्जाम है, एग्जाम होने के बाद उनका इंटरव्यू है, इंटरव्यू होने के बाद आपने को BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशलाइजेशन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में अपने को अपॉर्चुनिटी, फैसिलिटी मैनेजमेंट बोलते हैं उसको। कम से कम 17 कंपनी है कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में, जो वहाँ IT फील्ड है, रिटेल इंडस्ट्री है, ज्वेलरी इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्री है, उनके कोलैबोरेशन में है। लेकिन अगर यहाँ जाना चाहते हैं, जिनको हार्डवर्क करने की कैपेसिटी है, जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो ये पुंबा की इंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तो वहां से अपनों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या मिलेंगी?
एडमिशन होने के बाद कम से कम 3 महीने थियोरेटिकल अपने को स्टडी चलेंगे। उसके बाद में अपने को कॉर्पोरेट सेक्टर में, इंडस्ट्री में अपने को कम से कम वहां जो तो 30% थियोरेटिकल है, 70% 70% जो है तो प्रैक्टिकल है। अपने को इंडस्ट्री अपने को चॉइस करना है, वो इंडस्ट्री अपने को अप्रेंटिसशिप के लिए अपने को अपॉर्चुनिटी देते। फिर अपना अप्रेंटिसशिप चालू होने के बाद आपका रेपुटेशन कैसा है, अपना स्किल कैसा है, पूरा अपने को पूरा डिपेंड करता है कि अगर ये बंदा अच्छा है तो अपने को इसको स्टाइपेंड देंगे। कम से कम 12,000 तो 20,000 तक अपने को महीने को स्टाइपेंड मिलता है, जो अगर अपने को पूरा डिपेंड करता है कि अगर अपने को फीडबैक अच्छा मिलता है, अपने को सर्विस अच्छी देते हैं, तो उनको ऊपर डिपेंड करता है। पास आउट होने का वही कंपनी अपने को प्लेसमेंट देती है। या आने वाला फ्यूचर जो पुम्बा यूनिवर्सिटी में बहुत फैसिलिटी मैनेजमेंट है, उसमें हॉस्पिटलिटी है, मेडिकल इंडस्ट्री है, उसके बाद में टूरिज्म इंडस्ट्री है, बहुत सारे इंडस्ट्री उसमें पुम्बा के अंडरटेकिंग कोलैबोरेशन में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है। अगर ये होगा इंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड, अब सर मैंने कॉमर्स किया है, आर्ट्स किया है, सर मैं अभी क्या बीकॉम करने के बाद अपने को आगे क्या अपॉर्चुनिटी है, उसके अलावा मैं अगर बीबीए करता हूँ तो, लेकिन बीबीए करना चाहते तो बीबीए स्पेशलाइजेशन करिए। बीबीए करना चाहते तो ई कॉमर्स, उसके बाद में इकोनॉमिक्स है, उसके बाद में इंटरनेशनल बिजनेस है, उसके बाद में प्लेन बीबीए है, या बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिशन एक तो जर्नलिज्म में है। अभी बीबीए इन द लॉ है। अब बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ, बीबीए इसलिए अटैच किया है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लॉ के फील्ड है उसमें अगर जाना चाहते तो बेस्ट ऑप्शन बीबीए इन द लॉ LLB। लेकिन करना है तो स्पेशलाइजेशन करें कोई सच में। अभी बॉम्बे में, मुंबई यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन द शेयर मार्केट के रिलेटेड कुछ कॉलेजेस में अपॉर्चुनिटी मिली। उसके बाद में बॉम्बे में बहुत सारे कॉलेजेस में है, शायद मेरे ख्याल से 60 कॉलेज में भी शायद आ चुका है, मेरे को ऐसा मालूम करता है। बहुत सारे जो है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में आने वाली फ्यूचर बहुत अच्छी, कल भी थी, आज भी है और परसों भी है। उसके रिलेटेड अपन कुछ कर सकते हैं कि वो भी देखना जरूरी है। बैचलर ऑफ आर्ट्स या बीकॉम में या बीबीए में स्पेशलाइजेशन जो है एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। अगर एडवर्टाइजमेंट में अगर जाना चाहते हैं तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एडवर्टाइजिंग में अगर जाना चाहते हैं तो कम से कम अपने को 3 साल अगर कोई एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, काम करने के बाद उसके बाद में आपने को खुद की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री खोल सकते हैं। आने वाला फ्यूचर बिजनेस लाइन में उसमें आप जा सकते हैं। ये है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में। उसके अलावा अगर देखा जाए, कॉमर्स करते हैं लेकिन बीकॉम करते हैं या बीबीए करते हैं या कुछ भी बीए करते हैं, लेकिन एडमिशन लेने के पहले डिसाइड करना है ये मेरे को करना है तो क्यों करना है, इसकी वजह क्या है, आने वाला टारगेट क्या रखना जरूरी है। जैसे अपन 10वीं पास हो गए, बाद में आपने कॉमर्स में एडमिशन लिया, लेकिन कॉमर्स में एडमिशन क्यों लिया, क्योंकि अपने को सीए या सीएस होना है या मेरे को बीकॉम करना है, फिर छोटे मोटे इंडस्ट्री में अपने को ज्यादा अकाउंटेंसी बोल के अपने को काम करना है, बराबर है। लेकिन कोई भी यूजी में एडमिशन लेने से पहले प्लानिंग करें कि मेरे को बीकॉम होने के बाद या बीबीए होने के बाद, बीए होने के बाद मेरे को आगे क्या टारगेट करना है, ये पहले सोचना जरूरी है। फिर फर्स्ट ईयर से अपने को प्लानिंग करना है, मेरे को कैट देना है, क्या CMAT देना है, क्या GMAT देना है, उसके बाद में IIMC देना है। IIMC बोलो तो क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट जो है हिंदुस्तान में 8 इंस्टीट्यूट है। ये भारत सरकार प्रसारण मंत्रालय का अंडरटेकिंग आता है। अगर यहाँ से पास आउट होते तो अपने को डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो है दिल्ली दूरदर्शन, लोकसभा चैनल, राज्यसभा चैनल, बहुत सारे जो प्राइवेट इंडस्ट्री प्राइवेट चैनल जो है अपने को वहां से अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन अगर थोड़ा हटके कोर्स करते हैं, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म तो वो अपॉर्चुनिटी है, एक प्रेस मीडिया, एक इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन जा सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म आप कर सकते हैं। उसके बाद में जर्नलिज्म होने के बाद अपने को अपॉर्चुनिटी अच्छा मिल सकता है। ये है
इसके रिलेटेड। उसके अलावा अगर ग्रेजुएशन करते समय अगर आप महाराष्ट्र शासन के इंस्टीट्यूट 2 है एमएलएस बोले तो मास्टर ऑफ लेबर स्टडी, ये लेबर मिनिस्ट्री के अंडरटेकिंग आता है। लेबर मिनिस्ट्री के अंडरटेकिंग आने के बाद वहां से अपने को अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो हर इंडस्ट्री में जो HR वुमेन्स राइट बोल के जनरल मैनेजर की पोस्ट मिलती है। वो सही बोले तो मुंबई में परेल में है और नागपुर में। अगर एडमिशन मिलता है वही कोर्स बोले तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाए तो कम से कम 15 से 20 लाख खर्चा है, अगर वहां से करते तो 18,000 रुपए खर्चा है। तो मैं ये जो बता रहा हूँ, कॉमर्स बीकॉम में या बीबीए या बीए में एडमिशन लेते हैं या हाउ इन यूजी में एडमिशन लेते हैं तो प्लानिंग करना जरूरी है। तो अपने को फर्स्ट ईयर से अपने को बीकॉम के लास्ट ईयर में अपने को कौन सी इंट्रेंस एग्जाम देना वो प्लानिंग करना जरूरी, वो हिसाब से अपने को जाना जरूरी। जैसे मैंने बताया NRT नेशनल रेलवे ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट, वहां से अगर जाते हैं तो वहां भी आप मैनेजमेंट में PG कर सकते हैं। आप इस साल से 2020 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ह्यूमन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस साल से भी BA और बीकॉम को बच्चे के लिए गेट स्टार्ट कर चुके हैं। गेट ग्रेजुएशन अप टू डेट टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। आप कॉमर्स के बच्चे बोलेंगे, आप बोलेंगे सर हम तो कॉमर्स के, हम तो आर्ट्स के हैं, हमको गेट कैसे देते आती। इस साल से जो IIT कंडक्ट करती गेट, वही 2020 से बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों के लिए गेट गेट देने के चांसेस है। गेट देने के बाद अपने को जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, जो फॉर एग्जांपल IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, वहां अपने को PG के लिए एडमिशन है बहुत सारे गेट के बेस के ऊपर। अगर गेट का स्कोर अच्छा आता है, 2-3 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गेट के स्कोर के बेस के ऊपर अपने को पूरे ऑल इंडिया लेवल पे अपने को जॉब अपॉर्चुनिटी कॉर्पोरेट सेक्टर में दी है। देखा जाए गेट के स्कोर के बेस के ऊपर अपने को जॉब अपॉर्चुनिटी। कैट अगर देते हैं, कैट के बेस के ऊपर अपने को अच्छी इंस्टीट्यूट नहीं मिलती है, IIM, उसके बाद में अपने को IIT नहीं मिलता है। अगर मिलता अच्छा स्कोर है, कैट के बेस के ऊपर अपने को जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। ये अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैंने शुरू से मैं बताने को थोड़ा सा मैंने बताना चाहिए था, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी जो है सही बोले तो 3 इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात जो है तो महाराष्ट्र का स्टूडेंट करियर के बारे में कब सोचता है, 12वीं का रिजल्ट लगने के बाद देखेंगे कि आप लोग को क्या करना है। अगर जब आप सोचते हैं कि 12वीं के रिजल्ट लगने के बाद आप सोचेंगे, लेकिन जब तक ऑल इंडिया में एडमिशन प्रोसेस कम से कम 98% एडमिशन प्रोसेस खत्म होती है, तो अपने को आज से अपने को अपडेट रहना जरूरी है कि अपने को कौन कौन से इंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भरना है। ये पहली बात। दूसरी बात, महाराष्ट्र का स्टूडेंट पीछे क्यों रहा, उसकी एक ही वजह है, वो है आप अपना में न्यूज पढ़ते नहीं। 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। समीक्षा तो एप्ला में न्यूज पेपर में ठीक है सॉरी, ये एप्ला में न्यूज पेपर है। ये क्यों पढ़ना जरूरी है, इसकी वजह है पूरे इंडिया में जो एडमिशन प्रोसेस है, जॉब अपॉर्चुनिटी पूरे एप्लामी न्यूज पेपर में आते हैं। वैसे अपने महाराष्ट्र के न्यूज पेपर में एडमिशन प्रोसेस आएंगी उस गारंटी में। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, आप कौन सी भी पढ़ाई करें, कौन सा भी ग्रेजुएशन करें, बीकॉम करें, बीबीए करें, बीए करें, हाउ एनी ग्रेजुएशन, पूरे वर्ल्ड में प्लेन डिग्री को कोई कीमत नहीं है। उदाहरण तौर पर मैं एक उदाहरण देता हूं। हर घर में किचन में एक मिक्सर होता है। अगर मिक्सर को बर्तन अगर नहीं है तो मिक्सर कोई काम नहीं करता है, मिक्सर भंगार है। जब मिक्सर को एक बर्तन ग्राइंड करते हैं तो जब उसकी मिक्सर की कीमत समझ में आती है। वैसा एजुकेशन में प्लेन डिग्री वो बोलो तो मिक्सर, बाद में उसको अगर स्पेशलाइजेशन करते तो अपने
अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है। ये स्पेशलाइजेशन इम्पोर्टेंट है, ये उसके लिए है। आप देखा जाए करियर के बारे में, कॉमर्स के बारे में या आर्ट्स के बारे में, आर्ट्स के बारे में मैं ये बताऊंगा कि थोड़ा सब्जेक्ट वाइज अगर लेते हैं, अगर 12वीं कॉमर्स का बच्चा अगर बीए में जाना चाहता हो तो जा सकता है हर सब्जेक्ट में। अगर हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री में कम से कम 18 सब्जेक्ट है। हिस्ट्री में देखा जाए तो 12वीं के बेस के ऊपर एक कोर्स है, एक ही साल का कोर्स है। पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही जगह है, डेक्कन कॉलेज पुणे। डेक्कन कॉलेज बोलो तो डेक्कन एरिया में कॉलेज नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बोलते हैं। वहां जो है आर्कोलॉजिस्ट का एक कोर्स है, जो अपने पुराने कोई भी खुद काम करता है, कुछ भी निकलता है, उसके बाद में पूरे पुराने दस्तावेज है, उसकी देखभाल कैसा करना है, उसका जतन कैसा करना है, उसका रिलेटेड कोर्स है। अगर ये कोर्स करते हैं तो उसके बाद में अपने को जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्लास 2 की सैलरी मिलती है, वही सैलरी वो कोर्स करने के बाद मिलती है। उसके अलावा आर्कोलॉजिस्ट में 12 सब्जेक्ट है, उसका डिपार्टमेंट महाराष्ट्र में एक औरंगाबाद और नागपुर में है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स में करियर करना चाहते हो तो बेस्ट ऑप्शंस इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ऑप्शंस है। उसके अलावा सोशल साइंस में अगर करियर करना चाहते हैं, सोशल साइंस में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। अगर साइकोलॉजी में करियर करना चाहते हैं, साइकोलॉजी में आने वाला फ्यूचर इंडस्ट्री में बहुत सारे है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है। उसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। इम्पोर्टेंट 2 ब्रांचेस मैंने बताता हूं पूरे वर्ल्ड में। RSU एक यूनिवर्सिटी है, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी ये अहमदाबाद में, गांधीनगर में। ये जो यूनिवर्सिटी है ये होम मिनिस्टर के अंडरटेकिंग आता है। वहां होम मिनिस्टर का अंडरटेकिंग क्यों आता है? क्योंकि पूरा होम मिनिस्ट्री के अंदर अंडरटेकिंग जो डिफेंस आता है, उसके बाद में भारत सिक्योरिटी फोर्स आता है, उसके बाद में आर्मी, एयरफोर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस, महाराष्ट्र के पुलिस, बहुत सारे स्टेट की पुलिस उसमें इन्वॉल्व होती है। लेकिन होम मिनिस्ट्री अंडरटेकिंग वो यूनिवर्सिटी है, बहुत टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी। 12 के बेस के ऊपर वहां 2 ब्रांचेस है, एक बैचलर ऑफ आर्ट्स पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। यहां से अगर पास आउट होते हैं तो अपने को यूपीएससी क्रैक करते तो आईपीएस होने के बाद आप CBI, CID, इंटेलिजेंस इसमें जा सकते हैं। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन के स्पेशलाइजेशन भी कोर्सेस हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बताता हूँ, एक महीना का कोर्स RSU में, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में, फॉरेंसिक साइंस फोटोग्राफी। फॉरेंसिक साइंस फोटोग्राफी जो है वहां से अगर करते हैं और पास आउट होते हैं तो वहां से अपने को जो पुलिस डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, वहां अपने को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दूसरी बात, गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, उसको अभी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इस साल से दिल्ली में उसका कैंपस ओपन हुआ और मेन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में है। कॉमर्स के बच्चे हैं, वहां भी स्पेशलाइजेशन जो है कॉमर्स में अगर करना चाहते हैं, फॉरेंसिक साइंस स्पेशलाइजेशन अकाउंटेंसी, जो बहुत सारे घोटाले होते हैं, चारा घोटाला, उसके बाद में तेलगी घोटाला, उसके बाद में बहुत सारे घोटाला, अभी इसका घोटाला आ रहा, अभी वजह घोटाला। वजह घोटाला में बहुत सारे अकाउंट बैंकिंग में होते हैं, वो कैसा ओपन करते हैं, वो फॉरेंसिक साइंस में अकाउंटेंसी में आता है। लेकिन वो कॉमर्स के बाद में स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हैं या CA के बाद में आप कर सकते हैं, वो उसके रिलेटेड है। उसके अलावा अगर आपका मैथ और स्टैट है तो एक नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव और मुंबई यूनिवर्सिटी में एक BSc इन एक्चुअल साइंस अपने को एडमिशन मिल सकता है। BSc एक्चुअल साइंस। अब एक्चुअल साइंस क्या है? सही बोले तो एक्चुअल साइंस लेने वाले जो एजुकेशन लेने वाले पूरे इंडिया में सिर्फ 200 लोग है, लेकिन वहां 200 लोग है, लेकिन 150 लोग आउट ऑफ इंडिया है, 50 लोग ही इंडिया में है। एक्चुअल साइंस पूछे जाए तो किसको मालूम नहीं है। अभी कोरोना चालू है, उसके बाद में कोरोना के टाइम में अभी
बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस आ गए हैं, बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी है। अपन जो इंश्योरेंस देते हैं उसका जो डिजाइनर होता है उसका रिलेटेड एजुकेशन है, एक्चुअल साइंस। वो अगर करते हैं आने वाला फ्यूचर उसमें अच्छा है, बहुत सारे करोड़ों रुपए आप कमा सकते हैं, उसके रिलेटेड अपॉर्चुनिटी। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक ऑप्शन के ऊपर मत रहिए, कम से कम 10 ऑप्शन अपने पास होना जरूरी है कि अगर ये अच्छा कॉलेज नहीं मिलता तो सेकंड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, ये रखना जरूरी है देखा जाए। दूसरी बात है, मुंबई यूनिवर्सिटी जो पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 56 बोलो तो 56 यूनिवर्सिटी है, लेकिन जो मुंबई है, पुणे है, औरंगाबाद है, नागपुर है, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर है, उसके बाद में सोलापुर यूनिवर्सिटी है, उसके बाद में नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव है, उसके बाद में नागपुर है, अमरावती है, या महात्मा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी वर्धा। हर यूनिवर्सिटी या मुंबई में SNDT यूनिवर्सिटी है, वहाँ बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, जो यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जर्नलिज्म का कोर्सेस है। अगर बैचलर ऑफ जर्नलिज्म करते फ्यूचर आने वाला फ्यूचर उसमें अच्छा है, यह ऐसा प्लानिंग करना जरूरी है। ये हो गए करियर के रिलेटेड। अब मैं पूरा तो मैंने गाइडेंस तो किया, अब मैं स्टूडेंट को मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई सवाल तैयार है, कुछ आंसर तैयार है, तो आपको कम्युनिकेशन अपन चर्चा करेंगे, वो हिसाब से देखा जाए, फिर बाद में हर सवाल का मैं जवाब देता हूँ। हेलो। Yes, Nidhi, you can continue. हाँ, हेलो। हाँ मैडम। हा सर, एक मिनिट हा. निधी आता कंटिन्यू करेल, मग क्वेश्चन आन्सर हो, हो. सेशन घेतोय सर आपण. हो, मी फक्त आता हा क्वेश्चन आन्सर सेशन घेऊ. फक्त माझं नाव लिहून घ्या. माझं नाव संतोष कारले. माझा नंबर मी आता पहिले देतो, कारण बरेचसे लेफ्ट होऊन जातात, किंवा नंतर तुम्ही सर्क्युलर का नंतर देऊ नंबर. सांगा सर, आता काही हरकत नाही. माझा मोबाईल नंबर आहे संतोष कारले, करियर काउन्सिलर, 9370 139988. फोन करने के बाद आपका नाम बताइए या ऑनलाइन का सेशन का मेरे को रेफरेंस दीजिए, क्योंकि मैं समझ में आए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं और किस रेफरेंस से बोल रहे हैं. तो पूरा आपका कोई भी सवाल हो तो मैं आपका सवाल आंसर दूंगा. ओके, लेकिन कम से कम 5 बजे से तो रात को 10 बजे तक आप फोन लगा सकते हैं, या सवेरे 8 बजे 9 बजे तक. बाद में मैं थोडा बिझी रहता हूँ. हाँ, कोणाला प्रश्न विचारायचा असेल तर विचारा. Thank you, sir. Hello. It was really a great experience to listen to you. You have described so many career options like CA, CS, ICWA, law, business administration, management, humanities, fine arts, civil services examinations, and various competitive exams for all arts, commerce, and HSCC students. I hope all friends who are attending this program have got a clear picture of various career options. You might have got some questions in your mind. So I now request my friend Prathameshwara to proceed for the question and answer session. Over to you, Prathamesh. Thank you, sir. Thank you, Nidhi. It's my pleasure to proceed with this question and answer session. We have got some questions, career-related questions in the chat box. आपल्याला पहिला प्रश्न ईशान घाणेकर यांनी विचारलाय. इन सायन्स विच फील्ड हॅज अ स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट. म्हणजे सायन्सचा विद्यार्थी आहे. हा, हॅलो हॅलो. येस सर. हा, त्याचा प्रश्न मला समजला नाही, काय म्हणायचं. इन सायन्स विच फील्ड हॅज अ स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सायन्स नंतर जॉब ऑपॉर्च्युनिटी काय असं त्याचा म्हणायचा अर्थ आहे. हा, सायन्स मध्ये हं. कोणत्या फील्ड मध्ये स्कोप आहे एम्प्लॉयमेंट साठी.
पण सायन्समध्ये तर सगळ्या फील्डमध्ये रोजगाराच्या संधी आहे. पण पहिली गोष्ट अशी की त्याचं शिक्षण काय झालेलं आहे. हॅलो, तो 12वीचा विद्यार्थी सायन्सचा आहे का. हॅलो हॅलो सर इथे फक्त त्याचं नाव दिसतंय त्यामुळे बरं बरं ठीक आहे. जर तो सायन्सचा विद्यार्थी असेल तर माझं मत असं आहे की त्याचा प्युअर सायन्स आणि लाईफ सायन्सला ऑपॉर्च्युनिटी जास्त आहे. त्याचा बायो जर असेल तर त्या विद्यार्थ्यांनी लाईफ सायन्समध्ये फ्युचर चांगलं रिसर्चमध्ये. जर फिजिक्स आणि मॅथ जर असेल तर त्याच्यानंतर सुद्धा त्याला आयसर नायसर त्याच्यानंतर IISc बेंगलोर जर जे ऍडव्हान्स क्रॅक झाला तर त्याला इस्रोचे IISc ह्याच्यामध्ये जर गेला तर त्याला गव्हर्नमेंट ऑपॉर्च्युनिटी जॉब ऑपॉर्च्युनिटी 100% मिळेल. त्याच्यानंतर जर त्यांनी BSc करून त्याच्यानंतर PG करून त्याला रिसर्च सेंटरमध्ये ऑपॉर्च्युनिटी आहे किंवा ज्या सायन्स फील्डच्या रिलेटेड इंडस्ट्री आहे त्या बेसवर त्याला R&D मध्ये रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटमध्ये त्याला ऑपॉर्च्युनिटी जास्त संधी आहे. तर त्या पद्धतीनं करिअर त्याला उपलब्ध आहे. ओके सर आपला पुढचा प्रश्न रसिका पाटील यांनी विचारलाय. विच MBA इज बेटर पार्ट टाइम और फुल टाइम. बेटर फुल टाइम म्हणजे फुल टाइम याच्यासाठी म्हटलं मी म्हणजे कारण याचं कारण असं आहे. फुल टाइम करण्यापाठीमागचा उद्देश असा आहे की तुम्हाला प्रोजेक्टवर काम करण्याची संधी मिळते. त्याच्यानंतर त्या पण तुम्ही कुठून करता त्याच्यावर फार महत्वाचं आहे. जर IIM जर नाही मिळालं तर तुम्ही IITचं तरी चॉईस करावं किंवा नॅशनल इन्स्टिट्यूट जे आहे ते त्या पद्धतीने विचार करावं. पण मला एक आवर्जून सांगावं असं वाटेल, मुंबईची जी लोकॅलिटी आहे, मुंबईची जी मेंटॅलिटी आहे ही थोडी वर्तुळात राहण्याची आहे. मुंबईच्या बाहेर जायचं नाही. मुंबईतच सगळ्या गोष्टी आहेत. मुंबईच्या बाहेर जर तुम्ही पडलात ज्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट आहेत त्या ठिकाणी जर गेला तर तिथून मिळणारी ऑपॉर्च्युनिटी खूप चांगलं उत्तम प्रकारे आहे. असं घ्या. जर मुंबईत जर जायचं असेल तर सिडनॅम कॉलेज सगळ्यात गव्हर्नमेंटचं सगळ्यात चांगलं आहे. धीरूभाई अंबानी सगळ्यात चांगलं आहे. त्याच्यानंतर वेलिंग्टन इन्स्टिट्यूट सगळ्यात चांगलं आहे. जर रेग्युलर जर केलं तर ते फायदा जास्त आहे, हे लक्षात घ्या. हा, पार्ट टाइम जर करायचं असेल तर मग तुमची इंडस्ट्री जिथं जॉब अप आहे तो जॉब चांगल्या इंडस्ट्रीमध्ये असणं गरजेचं आहे. तर तुम्ही पार्ट टाइम केलेलं चांगलं. हा, तुम्ही एक चांगला प्रश्न म्हणजे उत्तम विचारलेला आहे. जर तुम्ही PG पोस्ट ग्रॅज्युएशन असेल, आता 4 वर्षाची डिग्री पण येणार आहे. जर तुम्ही 4 वर्षाची डिग्री घेतलेली असेल तर आता ह्या वर्षीपासून खरं महात्मा गांधी फिलॉसॉफी प्रोग्राम एक सुरू झालेला आहे जो IIM बेंगलोरने कंडक्ट केलेला आहे. म्हणजे तिथं एंट्रन्स एक्झाम जर तुम्ही देऊन आणि क्वालिफाय जर झाला, त्यांच्या इंटरव्ह्यूमध्ये जर सिलेक्शन जर झालं तर तुम्हाला IIM तर्फे MBA करण्याची संधी आहे. पण ती संधी अशी आहे तुम्हाला फील्ड वर्कवर काम करायचं आहे. त्याच्यानंतर त्याचं स्टायपंड तुम्हाला 50,000 रुपये पर मंथ स्टायपंड मिळणार आहे. तुम्हाला TAD सुद्धा त्या ठिकाणी दिला जाणार आहे. अशा पद्धतीने सुद्धा ऑपॉर्च्युनिटी आहे. हे झालं एक. दुसरे एक ऑपॉर्च्युनिटी अशी आहे, जर पार्ट टाइम जर तुम्हाला करायचं असेल तर आता सध्या प्रत्येक इन्स्टिट्यूटनी ज्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार आणि स्किल इंडियाच्या माध्यमातून प्रत्येक IIM प्रत्येक IIT यांनी ऑनलाईन काही कोर्सेस सुरू केलेले आहे. काही पोस्ट ग्रॅज्युएशन काही कोर्सेस सुरू केलेले की ज्या माध्यमातून तुम्हाला करिअर करण्याची संधी ऑपॉर्च्युनिटी चांगली आहे, हे लक्षात घ्या. फक्त शेवटी सांगायचं एवढंच उद्देश आहे की तुम्ही रेग्युलर जर केलं तर ओके. पुढे थँक्यू सर. आपला पुढचा प्रश्न FYJC सायन्स मानसी मोरे यांनी विचारलाय. त्यांनी सिव्हिल सर्व्हिस एक्झामिनेशन बद्दल विचारलं. सिव्हिल सर्व्हिसेस आता ते सायन्स विद्यार्थी नाही, बरोबर आहे. हॅलो. हो सर. हो सर. पहिली गोष्ट ती जर आता 12वीची परीक्षा देणार असाल तर सिव्हिल सर्व्हिसचा आता विचार करू नका, पहिला मुद्दा. दुसरा महत्वाचा मुद्दा की पहिले 12वीला चांगले मार्क घेण्याचा प्रयत्न करा आणि UGला चांगली डिग्री घेण्याचा प्रयत्न करा. म्हणजे चांगल्या कॉलेजला चांगली डिग्री जर मिळाली आणि त्याच्यानंतर 3rd इयरला विचार करा की मला सिव्हिल सर्व्हिसेस मध्ये जायचं आहे का नाही. मग सिव्हिल सर्व्हिसेस मध्ये जर जायचं असेल
आता फॉर एक्झाम्पल सिव्हिल सर्व्हिसेस फक्त आपल्या डोक्यासमोर एवढंच आहे. एक तर IAS, IPS, IFS. IFS म्हणजे इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिसेस आणि तिसरं इंडियन पोस्टल किंवा रेव्हेन्यू सर्व्हिसेस. पण माझं मत आहे की ती सिव्हिल सर्व्हिसेस मध्ये 27 पोस्टेस आहे. मग 27 पोस्टेस मध्ये जर असाल, ते जर नाही जर मिळालं तर मग बेटर आपल्याला त्या डिग्रीचा आपल्याला फायदा महत्वाचा आहे. तिनं जर केमिस्ट्री जर असेल, मग केमिस्ट्री जर घेतलंच असेल तर सिव्हिल सर्व्हिसेस मध्ये ती इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिसेस सुद्धा परीक्षा देऊ शकते. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर जर तिनं स्टॅटिस्टिक्स जर BSc ला जर घेतलं असेल तर ती मेन UPSC पण देऊ शकते. त्याच्यानंतर ती इंडियन स्टॅटिस्टिक्स आणि इकॉनॉमिक सर्व्हिसेस परीक्षा पण ती देऊ शकते. अशा पद्धतीने देऊ शकते. जर ती MBBS जर असेल तर ती मेन सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षा देऊ शकते. इंडियन मेडिकल सर्व्हिसेस ही परीक्षा देऊ शकते. त्या सिव्हिल सर्व्हिसेसच्या परीक्षा आहे. जर ती इंजिनिअरिंग करत असेल तर ती मेन सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षा देऊ शकते किंवा मग इंडियन इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस सुद्धा परीक्षा देऊ शकते. कारण UPSC तो भरपूर सिव्हिल सर्व्हिसेस आहे आणि जर महाराष्ट्राची सिव्हिल सर्व्हिसेस करायची असेल तर त्याला MPSC द्यावा लागेल. खरं जर म्हटलं महाराष्ट्रामध्ये, भारतामध्ये सिव्हिल सर्व्हिसेस म्हणजे 2च परीक्षा, UPSC MPSC. भारतामध्ये 324 प्रकारच्या स्पर्धात्मक परीक्षा, हे लक्षात घ्या. म्हणून जर तुम्हाला स्पर्धात्मक परीक्षा पाहिजे असेल तर हा पेपर वाचणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्यात जर तुम्हाला गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये जर सर्व्हिस पाहिजे असेल तर भारत सरकारचे कमीत कमी 528 डिपार्टमेंट आहे. किती? 528 डिपार्टमेंट आहे की त्या ठिकाणी तुम्हाला चांगल्या क्लास 1, क्लास 2च्या पोस्टेस मध्ये जाता येतात. हे लक्षात. ओके, नेक्स्ट. थँक्यू सर. आपला पुढचा प्रश्न सुशांत पुली यांनी विचारला. सायन्स स्ट्रीम कॅन HSVC student go for graduation in arts, commerce and science? हॅलो सर. हॅलो. सर, पुढचा प्रश्न सायन्स मधून सुशांत पुली यांनी विचारलाय. कॅन HSVC student go for graduation in arts, commerce and science? सायन्स न गेला तर उत्तम आहे, कॉमर्स न गेला तरी उत्तम आहे. पण याच्यामध्ये प्रश्न असा आहे की जर तो SCVCचा विद्यार्थी असेल, MCC जे म्हटलं जातं पुराण, तर त्यानं कोणत्या फील्डमध्ये त्यानं पहिले शिक्षण घेतलेलं आहे ते पहिले महत्वाचं आहे. पण बेटर वे जर त्याला जॉब ऑपॉर्च्युनिटीच्या रिलेटेड जर शिक्षण घ्यायचं असेल तर आता स्किल इंडियाच्या माध्यमातून BHOK नावाची डिग्री कोर्सेस आले. मला वाटतं साठे कॉलेजला पण आहे, तिथं कोणत्या ब्रांचमध्ये मला माहिती नाही. पण BHOK नावाचा अभ्यासक्रम आहे. जसं मी TIS बद्दल मी ज्यावेळेस बोललो तर TIS मध्ये सुद्धा बॅचलर ऑफ व्होकेशनलचा डिग्री कोर्सेस आहे. आता त्या ठिकाणी जे आहे तर तुम्हाला रिटेल मॅनेजमेंट, त्याच्यानंतर ज्वेलरी डिपार्टमेंट, त्याच्यानंतर ऑटोमेशन इंडस्ट्री याचा बॅचलर ऑफ व्होकेशनल कोर्सेस या ठिकाणी आलेला आहे की ज्या ठिकाणी तुम्हाला 70% प्रॅक्टिकल आहे, 30% थिअरॉटिकल आहे. म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये वर्क करायचं त्या पद्धतीत तुम्हाला 1 वर्ष करून सुद्धा तुम्हाला सर्टिफिकेट मिळेल, 2 वर्ष केल्यानंतर डिप्लोमाचं प्रमाणपत्र मिळेल आणि 3 वर्ष जे डिग्री 3 वर्ष कंटिन्यू केलं तर डिग्री सुद्धा मिळेल. पण जर तो विद्यार्थी असेल तर सायन्स साईडनं गेलं तर उत्तम ठरेल. तो हार्डवर्क करण्याची त्याची तयारी पाहिजे. ओके, थँक्यू सर. नेक्स्ट. आपला पुढचा प्रश्न मानसी मोरे यांनी विचारलाय सायन्स मधून. सर, कॅन यू टेल अस अबाउट सम गव्हर्नमेंट वेबसाईट फॉर द करियर ऑप्शन्स? गव्हर्नमेंट वेबसाईट जर बघितली असेल तर NIC ही एक वेबसाईट आहे. www.nic.in किंवा AC.in ही एक वेबसाईट. दुसरी CBSE एक वेबसाईट आहे, त्याच्यात करिअर ची वेबसाईट महत्वाची आहे. त्याच्यानंतर खरं जर म्हटलं तर ही जी वेबसाईट आहे याच्यामध्ये मिळणारी गव्हर्नमेंटची सगळी जी आहे employmentnewspaper.go.in ही एक वेबसाईट आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला ऍडमिशन प्रोसेस बद्दल जर जायचं असेल
तर महाराष्ट्राची खरं जर वेबसाईट आहे mahacet.org ही एक आहे. त्याच्यानंतर NTA हे एक वेबसाईट आहे, nta.ac.in. त्याच्यानंतर UGC.go.in ही एक वेबसाईट आहे का UGC.ac.in ही वेबसाईट जर बघितली तिच्या पूर्ण ऑल इंडिया युनिव्हर्सिटीच्या रिलेटेड आहे. ती ही सगळ्यात इम्पॉर्टंट वेबसाईट हे महत्वाचे आहे. नेक्स्ट. थँक्यू सर. आपला पुढचा प्रश्न दुर्वा लोखंडे कॉमर्स यांनी विचारलाय कॉमर्स मधून. एंटरिंग इन CA इज बेटर आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रॅज्युएशन? आफ्टर 12 नंतर जर तुम्ही जर विचार जर केला तर तो फायदा जास्त राहील, कारण ते तेवढा कालावधी तुमचं ग्रॅज्युएशन पण चालेल. CA जर तुम्ही केलं, CPT IPC जर केलं तर ते फायदा जास्त राहील. जर आफ्टर ग्रॅज्युएशन जर तुम्ही विचार केला तर तो त्याला थोडा वेळ जास्त लागेल, त्याला वर्ष जास्त लागेल. त्याच्यामुळे आफ्टर 12वी नंतर केलं तर सगळ्यात चांगलं राहील. नेक्स्ट. थँक्यू सर. आपण अजून प्रश्न घेऊया का? हो, घ्या, काही हरकत. ओके सर. आपला पुढचा प्रश्न सानिका तोडणकर यांच्याकडून आहे. विच इज द बेस्ट कॉलेज फॉर वेब डिझायनिंग आर्ट्स अँड हाऊ मेनी इयर्स ऑफ कोर्स शुड आय डू टू? वेब डिझायनिंग कोर्स, पहिली गोष्ट अशी आहे, ती 12वी कॉमर्सची विद्यार्थिनी आहे. हॅलो. पहिली गोष्ट ती कॉमर्सची विद्यार्थिनी आहे. हा, पण तिच्यामध्ये असं काही स्पेशल वेब. हा बोला. हॅलो. कंटिन्यू सर. सॉरी. हा, ती कॉमर्सची विद्यार्थिनी आहे. पहिली गोष्ट, वेब डिझायनिंग असा स्पेशल काही कोर्स नसतो. माझं मत असं आहे की तिनं BCA बॅचलर ऑफ कम्प्युटर ऍप्लिकेशन जर केलं आणि तिच्यामध्ये स्पेशलायझेशन जर तुम्ही क्लाउड सिक्युरिटीच्या संदर्भातला कोर्स स्पेशलायझेशन त्याच्यामध्ये जर केला, पण क्लाउड सिक्युरिटी, त्याच्यानंतर मोबाईल ऍप्लिकेशन सिक्युरिटी, डेटा अनालिसिस सिक्युरिटी जर तुम्ही जर केलं तर तो बेटर वे तुम्हाला वेब डिझाईनसाठी खूप फायदेशीर ठरेल. म्हणजे जर तुम्ही कम्प्युटरचं नॉलेज त्याच्याबरोबर तुम्ही वेब डिझायनिंग त्या पद्धतीने जर केलं तर तो एक जास्त चांगला अभ्यासक्रम, चांगल्या पद्धतीने वेब डिझायनर तुम्ही होऊ शकतात. पण त्याच्याबरोबर तुम्ही क्लाउड सिक्युरिटी किंवा डेटा सायंटिस्ट हा जर कोर्स त्याच्याबरोबर जर केला तर तो एक फायदेशीर आहे. तुम्ही वेब डिझायनरच्या संदर्भात सांगितलं म्हणून मी क्लिअर करतो. तुम्ही BA, BCom, BSc, BBA हाऊ मेनी डिग्रीला जरी ऍडमिशन जर घेतलं तर तुम्ही एक काम करा की IIT मद्रासची ऑनलाईन BSc डेटा सायंटिस्ट डिग्री तुम्ही करू शकता. BSc डेटा सायंटिस्ट करत असताना तुम्ही वेब डिझायनरला तो एक फायदेशीर तो अभ्यासक्रम करू शकतो. कारण कोणत्या वेबसाईट वेब डिझाईन करत असताना समोरच्या इंडस्ट्रीनं कोणत्या पार्टीनं जर तुम्हाला वेबसाईट डिझाईन करायला सांगितली तर त्या वेबसाईटवर जर खरं जर बघितलं तर डेटा सायंटिस्ट हे त्याला फायदेशीर ठरू शकतं. जसं जर मी तुम्हाला www.nic.eec.in ही वेबसाईट सांगितली, ही भारत सरकारची खरं वेबसाईट आहे. या वेबसाईटवर जर बघितलं तर तुम्हाला पूर्ण भारताचा खजिना त्या ठिकाणी, करिअर ऑपॉर्च्युनिटी, डिपार्टमेंट हे सगळ्यात तुम्हाला त्याच्यावर मिळेल. मग त्या वेबसाईटवर कुठल्या पद्धतीचा लोड येता कामा नये, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला बघणं गरजेचं आहे. त्या वेबसाईट हँग होता कामा नये. मग त्याचं शिक्षण आपल्याला त्या सायबर सिक्युरिटीमध्ये त्याच्या रिलेटेड स्पेशलायझेशन BCA मध्ये केलं तर तो फायदेशीर आहे. असं स्पेशल तुम्हाला वेब डिझायनिंगचा कोर्स असा नाहीये, फक्त तो प्रायव्हेट याच्यामध्ये चालतो वेब डिझायनिंग, तुमच्या स्किलवर अवलंबून. नेक्स्ट. थँक्यू सर. आपला पुढचा क्वेश्चन आर्ट्स फील्ड मधल्या अस्मी अनुज कडून आहे. बोला. कॅन यू टेल अ बीट ऑफ स्कोप इन हॉटेल मॅनेजमेंट अँड culinary art after 12th? ओके. मुलीनं विचारला ना प्रश्न. हॅलो. विद्यार्थ्याचं नाव काय? अस्मी. हा, पहिली गोष्ट अशी आहे, मुलींच्या दृष्टिकोनातून विचार करायला जर म्हटलं हॉटेल मॅनेजमेंट कडे जायचं असेल तर पहिली वैयक्तिक पात्रता अशी असायला पाहिजे. पहिली गोष्ट, तुम्हाला कोणत्या कामाची लाज वाटता कामा नये. तुम्हाला कोणतंही जर काम सांगितलं तर त्याचं
राग येता कामा नये. आणि दुसरी गोष्ट, कमीत कमी 10 ते 12 तास किंवा 15 तास काम करण्याची कॅपॅसिटी तुमच्यामध्ये असायला पाहिजे, तरच तुम्ही हॉटेल मॅनेजमेंट मध्ये टिकू शकता. मग हॉटेल मॅनेजमेंट मध्ये जायचं असेल तर तुम्ही नॅशनल इन्स्टिट्यूटचा विचार करणं गरजेचं आहे, जी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी www.nta.ac.in ही तिची वेबसाईट आहे. त्या वेबसाईटवर गेल्यानंतर तुम्ही स्टुडंटला क्लिक करा. स्टुडंटला क्लिक केल्यानंतर तिच्यामध्ये नॅशनल हॉटेल मॅनेजमेंट केटरिंग जेई नावाची परीक्षेला क्लिक केलं, त्याच्यावर तुम्हाला त्या सगळ्या गोष्टी ती माहिती तिच्यात मिळेल. त्याचं प्रॉस्पेक्ट, त्याचे फॉर्म आलेले आता सध्या तुम्ही रजिस्ट्रेशन करू शकता. किंवा एनटीएचं ऍप सुद्धा आहे, एनटीए अभ्यास म्हणून. त्या ऍपवर गेलात तर त्याच्या मॉक टेस्ट सुद्धा तुम्हाला तिच्यामध्ये त्या परीक्षाबद्दलच्या तिच्यात मॉक टेस्ट तुम्हाला देता येतात. मग हॉटेल मॅनेजमेंट करायचं असेल तर तुम्ही नॅशनल इन्स्टिट्यूट मधून केलेला फायदेशीर ठरेल, कारण तिथून मिळणारी ऑपॉर्च्युनिटी सगळ्यात चांगली आहे. कारण हॉटेल मॅनेजमेंटसाठी गव्हर्नमेंट ऑपॉर्च्युनिटी फार कमी आहे, पण कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये सगळ्यात जास्त आहे. आणि जर नाही क्वालिफाय झालं तर त्याच्यासाठी महाराष्ट्राची सीईटी www.mahacet.org ही तिची वेबसाईट आहे. तिच्यामध्ये हॉटेल मॅनेजमेंट तिची वेबसाईट सेपरेट असते. त्याला क्लिक केल्यानंतर त्याच्यावर तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करावं लागेल. रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर तुम्हाला ती सीईटी दिल्यानंतर महाराष्ट्रातल्या इन्स्टिट्यूटमध्ये ऍडमिशन तुम्हाला मिळू शकतं. आलं लक्षात. आणि सगळ्यात भारतामध्ये 4थ्या नंबरला 3ऱ्या नंबरला जे हॉटेल मॅनेजमेंटची इन्स्टिट्यूटची महाराष्ट्रामध्ये औरंगाबादला आहे. IHM औरंगाबाद हॉटेल मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट ही सगळ्यात टॉप लेवलची, पण हा खर्चिक अभ्यासक्रम आहे. इथे जर म्हटलं पर इयर काहीतरी 4 लाख रुपये खर्च आहे त्याला, आणि तिथून मिळणारी ऑपॉर्च्युनिटी प्लेसमेंट सगळ्यात चांगला आहे. ओके, नेक्स्ट. थँक्यू सर. सर पुढचा प्रश्न कॉमर्स बी डिव्हिजन मधून संजना कराडकर यांनी विचारलाय. सर, कॅन यू टेल मोर अबाउट क्रिमिनल लॉ, युनिव्हर्सिटी सब्जेक्ट, क्वालिफिकेशन, डिग्रीज, एम्प्लॉयमेंट अँड फ्युचर स्कोप? ओके, पहिली गोष्ट अशी आहे की तुम्ही 12वी कॉमर्स नंतर तुम्ही एक तर क्लॅट किंवा महाराष्ट्राची सीईटी द्या. त्याच्यानंतर LLB 5 वर्षाचं 12वी नंतर आहे. तिच्यामध्ये एक 3 वर्ष तुम्हाला जनरल लॉचं पूर्ण कायद्याचं कॉन्स्टिट्यूशनचा तुम्हाला अभ्यास दिला जातो. त्याच्यानंतर तुम्हाला डिसाईड करायचं की तुम्हाला क्रिमिनल लॉ मध्ये जायचं का सिव्हिल लॉ मध्ये जायचं आहे. मग क्रिमिनल लॉ मध्ये जर जायचं असेल तर त्याच्याबरोबर तुम्हाला फॉरेन्सिक सायन्सचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे. मग फॉरेन्सिक सायन्स लॉ शिकणं गरजेचं आहे. मग फॉरेन्सिक सायन्स लॉ जर क्रिमिनल लॉचे अटॅचमेंट असल्यामुळं मग त्याच्यामध्ये तुम्ही करस्पॉन्डिंग कोर्सेस तुम्ही याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही करू शकता. कुठे? एक तर गुजरात फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी, किंवा दुसरं आहे RSU रक्षा शक्ती युनिव्हर्सिटी, किंवा NPTEL नावाची एक वेबसाईट आहे. 7 IIT, एक IISc बेंगलोर यांनी हे वेबसाईट डिझाईन केलेली आहे. NPTEL.ac.in या वेबसाईटवर सुद्धा तुम्हाला काही 12 आठवड्याचे, काही 6 आठवड्याचे किंवा 1 वर्षाचे काही कोर्सेस चालतात. त्या वेबसाईटवर जर गेला तर खजिना आहे खरं ती वेबसाईट. ही सगळ्यात मोठी खजिना आहे. एज्युकेशन फील्डमध्ये ऑनलाईन शिक्षण देणारी ही सगळ्यात मोठी टॉप लेवलवरची डिपार्टमेंट इन्स्टिट्यूट आहे, जे IIT आणि IISc बेंगलोर तुम्हाला सगळ्या फील्डचं ऑनलाईन शिक्षण, त्याच्यामध्ये लॉचं पण शिक्षण टर्मिनॉलॉजीमध्ये परवाच बघितलं मी, वाचलं. तिच्यामधून जर केलं तर ते सगळ्यात चांगलं. पण तुम्हाला लॉला ऍडमिशन घेणं पहिलं गरजेचं आहे. किंवा मग आफ्टर ग्रॅज्युएशन नंतर सुद्धा तुम्ही शिक्षण घेऊ शकता. नेक्स्ट. थँक्यू सर. पुढचा क्वेश्चन तन्वी शिंदे यांच्याकडून FY कॉम मधून तन्वी शिंदे यांनी विचारलाय. कॅन यू ओके. तन्वी शिंदे यांनी विचारलंय, कॅन यू टेल अ बीट ऑफ स्कोप इन एनिमेशन अँड एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी? ऍनिमेशन मध्ये माझं एक सजेशन असं राहील, जी BCom ची विद्यार्थिनी आहे, जर तुम्हाला ऍनिमेशन फील्ड मध्ये जायचं असेल तर त्याच्याबरोबर तुम्ही लास्ट इयरला BCom ला असताना जर तुम्ही UCIT किंवा NID किंवा नॅशनल इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ग्राफ डिझायनिंग ही भारत सरकारची इन्स्टिट्यूट राजस्थानला आहे. इथून जर तुम्ही कोणत्या याच्यामध्ये ऍनिमेशन फील्ड मध्ये जायचं आहे
जर तुम्ही जर्नलिझम अॅनिमेशन मध्ये जर गेला किंवा ग्राफिक डिझायनिंग अॅनिमेशन मध्ये जर गेला तर त्याच्यानंतर रोजगाराच्या संधी सगळ्यात जास्त आहे. मग रोजगाराच्या संधी सगळ्यात कुठे जास्त आहे तर त्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी जे भारत सरकार प्रसार मंत्रालय आहे, आपलं महाराष्ट्र शासनाचं माहिती प्रसारण मंत्रालय जे आहे, या ठिकाणी तुम्हाला भारत सरकारच्या ऑपॉर्च्युनिटीमध्ये चांगल्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. नेक्स्ट. थँक्यू सर. आपला पुढचा प्रश्न पूजा महाले यांनी विचारलाय कॉमर्स बी डिव्हिजन मधून. विच कोर्स इज अ बेस्ट फॉर करियर CA और MBA? MBA सगळ्यात चांगला आहे. आता तुम्ही म्हणाल CA का नको, कारण CA आता दिवसेंदिवसचे CA होण्याची संख्या जास्त वाढते आहे. पहिला मुद्दा, कारण CA ला ऑपॉर्च्युनिटी काय मिळेल आता सध्या याची गॅरंटी नाही. म्हणून मी बऱ्याच वेळेला सांगतो की शिक्षण कसं घ्यायचं की येणाऱ्या 10 वर्षानंतर कोणत्या करिअरला मागणी असणार आहे त्या पद्धतीचा विचार करणं खरं गरजेचं आहे. आने वाले 10 साल में कौन से करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेंगी वो सोचना जरूरी है. तो CA से बेटर है तो जो है मैनेजमेंट में फील्ड में जाते तो बेटर अच्छा है. लेकिन अगर CA करते तो CA भी गलत नहीं है, अच्छा करियर है, लेकिन CA करने के बाद अपने को ऊपर टैलेंट होना जरूरी है. फिर CA होने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट है वहां से अगर तुम अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल RBI में आपको अप्लाई कर सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है वहां से अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद में जो नीति आयोग का डिपार्टमेंट है वहां अगर अप्लाई करते हैं तो CA के लिए वहां फ्यूचर अच्छा है. अगर तुम ये सोचते हैं कि CA होने के बाद मैं खुद का ऑफिस डालूंगा, मैं मेरा बिजनेस करूंगा, CA होने के बाद कम से कम तुमने 3 या 4 साल जॉब करना जरूरी है. मार्केट में क्या मांग है वो हिसाब से अपने को वो स्टडी करना जरूर है. फिर वही हिसाब से अपने को बिजनेस स्टार्ट कर से. तो ये मेरा सजेशन रहेगा. डिसाइड आपको करना है या CA या MBA. लेकिन MBA करना चाहते हो तो टारगेट IIM का रखो, टारगेट IIT का रखो, तो अपने को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है. नेक्स्ट. थँक्यू सर. पुढचा प्रश्न मनोज चौधरी यांनी विचारलाय. सर, कॅन यू टेल मोर अबाउट द आर्किओलॉजी? आर्कॉलॉजिस्ट मध्ये जर जायचं असेल तर पहिली गोष्ट तुम्हाला एक BA आर्ट्सला ऍडमिशन घ्यावं लागेल. त्याच्यामध्ये हिस्ट्री, इतिहास हा सब्जेक्ट घ्यावा लागेल. इतिहास घेतल्यानंतर तुम्हाला आर्कॉलॉजिस्ट डिपार्टमेंट जे त्याच्यामध्ये स्पेशलायझेशन, एक तर मुंबई विद्यापीठाचं आर्कॉलॉजिस्ट डिपार्टमेंट सगळ्यात चांगलं आहे. मी जे डेक्कन कॉलेज पुण्याचं सांगितले ते सगळ्यात एक चांगलं आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचं आर्कॉलॉजिस्ट डिपार्टमेंट सगळ्यात चांगलं आहे. इथं जर तुम्ही MA आर्कॉलॉजिस्ट किंवा MSc आर्कॉलॉजिस्ट जर केलं तर ते सगळ्यात चांगलं राहील. मग त्याच्यानंतर आर्कॉलॉजिस्ट डिपार्टमेंटमध्ये तुम्हाला चांगल्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. नेक्स्ट. थँक्यू सर. पुढचा प्रश्न साक्षी नाले यांनी विचारलाय, त्या सायन्स स्ट्रीम मधले. नीट एक्झाम आणि MBBS डिग्रीसाठी आणि नंतर स्पेशलायझेशनच्या बद्दल सांगा. नाही, पहिले आता ते 12वी सायन्सचे विद्यार्थी आहे, पहिले नीटवर फोकस करा. नीटवर फोकस केल्यानंतर मला कमीत कमी 550-600 मार्क टार्गेट ठेवा. तुम्ही टार्गेट ठेवायचं एम सर, तर तुम्हाला ऑल इंडियातलं चांगलं कॉलेज मिळेल. त्याच्यानंतर जर तुम्ही गव्हर्नमेंटचे टॉप लेवलवरचं कॉलेज ठेवलात तर तुम्हाला महाराष्ट्रातले टॉप कॉलेज तुम्हाला मिळू शकतं. जर तुम्ही मुंबईतले KM, JJ किंवा कुपर हे कॉलेजचं टार्गेट ठेवलं तर तुम्हाला एखाद्या वेळेस गोंदिया वगैरेचं कॉलेज किंवा जळगावचं कॉलेज तुम्हाला मिळू शकतं. त्याच्यासाठी तुम्हाला टार्गेट नीटमध्ये 550-600 प्लस जर ठेवलं तुम्हाला गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चांगलं मिळू शकतं. MBBS झाल्यानंतर तुम्ही खरं जर बघितलं नीट ही परीक्षा क्रॅक करावं लागतं. मग त्याच्यानंतर तुम्हाला स्पेशलायझेशन MD-MS जे पोस्ट ग्रॅज्युएशन मेडिकल इन्स्टिट्यूट रिसर्च ही चंदीगडला आहे आणि दिल्लीला आहे. इथं जर PG जर केलं तर सगळ्यात चांगलं ठरेल. PG साठी ती इन्स्टिट्यूट सगळ्यात चांगली आहे. आणि त्याच्यानंतर ते जर नाही मिळालं तर पोस्ट ग्रॅज्युएशन एम्सचं टार्गेट ठेवा, तिथून PG करा. कारण PG MD के MS केल्यानंतर स्पेशलायझेशन सुपर स्पेशलायझेशन करावं लागतं. ते 109 प्रकारमध्ये, ते तुम्हाला डिसाईड करायचं कशामध्ये करायचं आहे ते लक्षात घ्या. नेक्स्ट. थँक्यू सर.
पुढचा प्रश्न कॉमर्स मृणाली मुरकर यांनी विचारलाय. इज डायरेक्ट एंट्री रूट इन CA बेटर? नाही नाही, समजला नाही प्रश्न मला. प्रश्न समजला नाही मला तो काय. सर नेक्स्ट क्वेश्चन. पुढचा प्रश्न श्रुपा खालकुंडरे यांनी विचारलाय सायन्स स्ट्रीम मधून. व्हॉट आर द बरं. गव्हर्नमेंट ऑपॉर्च्युनिटी आफ्टर कम्प्लिटिंग ग्रॅज्युएशन फ्रॉम IIT? नाही, IIT मधून जर ग्रॅज्युएशन झालं तर तुम्हाला गव्हर्नमेंट मध्ये डायरेक्ट जॉब मिळेल अजिबात नाही, पहिला मुद्दा. हा, जर तुम्हाला गव्हर्नमेंट ऑपॉर्च्युनिटी पाहिजे सायन्स स्ट्रीम मधून तर तुम्ही जे ऍडव्हान्स चांगल्या पद्धतीनं क्रॅक करा. ऍडव्हान्स क्रॅक केल्यानंतर तुम्ही IISc बेंगलोरला ऍडमिशन मिळवा. तर तुम्हाला गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये जे रिसर्च सेंटर आहे, DRDO आहे, इस्रो आहे, IISc बेंगलोर आहे, NCL आहे, TFR आहे, बऱ्याचशा रिसर्च संस्था आहेत, तुम्ही सायंटिस्ट म्हणून तुम्ही जाऊ शकता. दुसरे इन्स्टिट्यूट आहे IIST, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नॉलॉजी. इथून जर तुम्ही बीटेक जर झालात किंवा MTech जर झालात, म्हणजे ऍडव्हान्स परीक्षा दिल्यानंतर, तर तुम्हाला त्या ठिकाणाहून मिळणारी ऑपॉर्च्युनिटी इस्रो मध्ये डायरेक्ट सायंटिस्ट म्हणून जाता येतात. मग IITतून पास आउट झाल्यानंतर तुम्हाला गव्हर्नमेंट स्ट्रीम मध्ये जर जायचं असेल एम्प्लॉई म्हणून जॉबसाठी, तर तुम्हाला गव्हर्नमेंटच्या जेवढ्या बी रिक्वायरमेंट येतील त्याच्यासाठी तुम्हाला अप्लाय करावा लागतो. अप्लाय केल्यानंतर त्यांच्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम द्यावा लागेल. मग त्याच्यानंतर तुम्ही गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये जाऊ शकता. नाही तर मग गेट क्रॅक करायची, चांगला स्कोअर मिळवायचा आणि गव्हर्नमेंट रिसर्च इन्स्टिट्यूट मध्ये तुम्ही शिक्षणाला जायचं, तुम्हाला जॉब ऑपॉर्च्युनिटी कंटिन्यू. नेक्स्ट. थँक्यू सर. पुढे सिद्धी सांगरे यांनी विचारलंय की कॅन यू टेल मी अबाउट स्कोप अँड करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर एरोनॉटिकल इंजिनिअरिंग? पहिली गोष्ट, एरोनॉटिकल इंजिनिअरिंग करायचं असेल तर मी सांगेल भारतातून केलं तर त्याला स्कोप राहणार नाही. पहिला मुद्दा. करायचं असेल तर IIT किंवा NIT जे टॉप लेवलवरचे इन्स्टिट्यूट आहे, इथून केलेला सगळ्यात चांगला आहे. कारण एरोनॉटिकल इंजिनिअरिंग करायचं असेल तर त्यांच्याकडे जे विमान असायला पाहिजे प्रॅक्टिकलसाठी. कारण ते बऱ्याच ठिकाणी IIT मध्ये सुद्धा 1, 2, 3 विमान आहेत, पण त्याचं वेगवेगळ्या विमानाचं हेलिकॉप्टरचे तुम्हाला अभ्यास शिकवणं गरजेचं. त्यावेळेस तुम्हाला नॉलेज चांगलं मिळेल. तुम्हाला वर्ल्ड मध्ये डिमांड आहे. मग एरोनॉटिकल इंजिनिअरिंग करायचं असेल तर माझं स्पष्ट मत आहे की तुम्ही सरळ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग करा, काही ENTC करा, गेट द्या. गेट नंतर तुम्ही एरोनॉटिकल का एरोस्पेस मध्ये जा आणि त्याच्यानंतर मिळणारी ऑपॉर्च्युनिटी सगळ्यात चांगली आहे. हे जर करायचं असेल तर डिफेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ द ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी नावाची युनिव्हर्सिटी जी पुण्यामध्ये आहे, या ठिकाणी जर MTech एरोस्पेस इंजिनिअरिंग जर केलं तर तिथून मिळणारी संधी डायरेक्ट तुम्हाला गव्हर्नमेंटमध्ये DRDO, इस्रो. नेक्स्ट. थँक्यू सर. पुढचा प्रश्न साक्षी पटांगे यांनी विचारलाय कॉमर्स स्ट्रीम मधून. सर, कॅन यू गिव्ह अस सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द CS? व्हॉट इज द प्लेन CS और CS विथ LLB? हा, तर पहिली गोष्ट अशी आहे की तुम्ही 12वी कॉमर्स नंतर किंवा जर तुम्ही CS LLB जर चॉईस जर केलं तर मग याच्यासाठी तुम्ही क्लॅट द्या. क्लॅट देऊन जर नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी बेंगलोर, नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी दिल्ली, नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी गांधीनगर इथून जर तुम्ही LLB CS जर केलं तर ते सगळ्यात चांगलं राहील. जर तुम्ही लॉला ऍडमिशन घेतलं दुसरीकडे आणि त्याच्याबरोबर CS जर केलं तर तो फायदेशीर जास्त ठरेल. नुसतं प्लेन CS करण्यात त्याला महत्व नाही. नेक्स्ट. थँक्यू सर. पुढचा प्रश्न कॉमर्स संजना कराडकर यांनी विचारलाय. What are the career opportunity if the particular student is very interested in adventure and loves adventure? काय? What are the career opportunity? Sir, question asking. What are the career opportunities if the particular student is very interested in the adventure and loves adventure? लॉ ऍडव्हेंचर. पण हा मला प्रश्न नाही समजला. सर, ऍडव्हेंचर आवडतो
आणि ऍडव्हेंचर करायला आवडतं तर त्याला ऑपॉर्च्युनिटी काय, करिअर ऑपॉर्च्युनिटी? नाही, त्याचं थोडं मी अभ्यास करून मला माझा नंबर त्याला द्या, मी त्याच्याशी उद्या मला फोन करायला सांगा, मी सांगतो त्याला. ओके ओके सर. आपला पुढचा प्रश्न सायन्स स्ट्रीम मधून राहुल मुजगावकर यांनी विचारलाय. हाऊ मच करिअर स्कोप इज देअर इन ऍक्च्युअल सायन्स? आता 12वी कॉमर्सचा विद्यार्थी आहे. हॅलो, 11वी कॉमर्स, 11वी सायन्स मधल्या. 11वी सायन्स, त्याचं जर मॅथ असेल, जर त्यांना बीएससी स्टॅटिस्टिक्स जर केलं तर ऍक्च्युअल सायन्स त्याला सुपर स्पेशलायझेशन करायला चांगली संधी उपलब्ध होईल. जर ऍक्च्युअल सायन्स बीएससी ऍक्च्युअल सायन्स जर करायचं असेल तर जळगावला किंवा मुंबईला आहे. पण ऍक्च्युअल सायन्स जर करायचं असेल तर माझं मत असं आहे की पोस्ट ग्रॅज्युएशन स्टॅटिस्टिक्स मध्ये केलं तर ऍक्च्युअल सायन्स त्याला करता उत्तम राहील, किंवा मग सीए केल्यानंतर ऍक्च्युअल सायन्स करणं उत्तम ठरेल. कारण तो सीएचा रिलेटेड कोर्स असल्या कारण तो खूप हार्ड सब्जेक्ट आहे. त्याच्यामध्ये ऍक्च्युअल सायन्स हा असा कोर्स आहे की त्याच्यामध्ये 17 पेपर असतात. त्या 17 पेपरपैकी 12 पेपर क्वालिफाय व्हावं लागतात. तर ऍक्च्युअल सायन्स त्याला करण्याची करिअर उत्तम मिळू शकतं त्या लेवलचा अभ्यास करणं. ऍक्च्युअल सायन्ससाठी त्याने स्टॅटिस्टिक्सचा विचार करावा, हा स्पष्ट माझं मत आहे. थँक्यू सर. पुढचा प्रश्न सुशांत पुली यांनी विचारलाय. कॅन यू टेल अबाउट द फुल सायंटिस्ट एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज अँड स्कोप अँड सॅलरी? कशाचा? हॅलो, कॅन यू टेल अबाउट फूड सायंटिस्ट एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज अँड स्कोप अँड सॅलरी? अच्छा, पहिली गोष्ट फूड सायन्स मध्ये जर जायचं असेल तर पहिली गोष्ट, आता तो सायन्सचा विद्यार्थी आहे, एक तर फूड टेक्नॉलॉजीमध्ये शिक्षण घ्यावं आणि त्याच्यानंतर त्याने गेट ही परीक्षा द्यावी. गेट दिल्यानंतर त्याच्यानंतर त्याने डिफेन्स ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी युनिव्हर्सिटी इथं एमटेक फूड सायन्स मध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशन करावं किंवा IIT मधून करावं. आणि त्याच्यानंतर DRDOच्या काही परीक्षा असतात फूड सायन्स मध्ये, तुम्हाला सायंटिस्ट म्हणून जाण्याची संधी. त्याची सॅलरी साधारणतः 1.5 ते 2.25 लाखापर्यंत मिळते. आणि DRDO त्याच्यामध्ये खूप काम करतं फूड सायन्स मध्ये, कारण बऱ्याच ठिकाणी डिफेन्स मध्ये असं असतं की प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये सगळ्या बाबतीत फूड सायन्स संशोधन केलं जातं की कोणत्याही पद्धतीचं फूड तयार करायचं असेल, कोणत्या व्यक्तीला किंवा कोणाला पण द्यायचं असेल, त्याचं संशोधन करण्याची संधी ही DRDO मध्ये होते. आणि त्यानुसार ती मिळणारी सॅलरी खूप चांगल्या पद्धतीचं आहे. ओके, नेक्स्ट. ओके सर, थँक्यू सर. आपला पुढचा प्रश्न उर्वी कामंत यांनी विचारलाय. व्हॉट इज द कोर्स इफ वी वॉन्ट टू डू इव्हेंट मॅनेजमेंट? इव्हेंट मॅनेजमेंट मध्ये जर जायचं असेल तर याच्यामध्ये स्पेशलायझेशन BBA इन द इव्हेंट मॅनेजमेंट हे मुंबईमध्ये आणि पुण्यामध्ये काही ठराविक कॉलेजेसमध्ये चालवलं जातात. पण इव्हेंट मॅनेजमेंट अशा ठिकाणी करा की ज्या ठिकाणी तुम्हाला प्रॅक्टिकल नॉलेज जास्त मिळेल, अशा ठिकाणी करावं. आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट हा कोर्स बिझनेस देणारा ऑपॉर्च्युनिटी आहे. पण बिझनेस देणारा जरी ऑपॉर्च्युनिटी असला, पण त्याच्यासाठी तुम्हाला कमीत कमी 2 ते 3 वर्ष तुम्हाला इव्हेंट मॅनेजमेंट मध्ये इंडस्ट्रीमध्ये काम करणं गरजेचं आहे. कारण कोणताही इव्हेंट करायचा असेल, साधं मुंबई सारख्या ठिकाणी जावळाचा कार्यक्रम जरी असला किंवा बारशाचा कार्यक्रम जरी असतो, तो इव्हेंट माध्यमातूनच केला जातो. आणि जास्त मोठ्या कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये जर इव्हेंट करायचं असेल, फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये, आपण टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीमध्ये बघत असतो, कोणते पुरस्कार सोहळा असेल, अवॉर्ड सोहळा असेल, तर ते इव्हेंट मॅनेजमेंट करत असतात. म्हणजे छोट्या त्या कार्यक्रमापासून तर मोठ्या इव्हेंट पर्यंत ह्या पद्धतीनं तो इव्हेंट इंडस्ट्रीला दिला जातो. तर तो कोर्स एकदम उत्तम आहे आणि चांगला जॉब ऑपॉर्च्युनिटी देणारा आणि बिझनेस देणारा ऑपॉर्च्युनिटी आहे. हा 1 वर्षाचा डिप्लोमा पासून तर डिग्री कोर्सेस आहे. याच्यामध्ये इव्हेंट मॅनेजमेंटचं स्पेशलायझेशन MBA सुद्धा आहे. ओके, थँक्यू सर. शेवटचा प्रश्न व्हॉट आर करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज इन मेडिकल अदर दॅन MBBS? म्हणजे मेडिकलच्या व्यतिरिक्त अजून कोर्सेस काय आहे? ओके, MBBS जर नाही मिळालं
तर तुम्हाला नीटच्या स्कोरवर MBBS BDS तर आहेच आहे, पण BMS BHMS BMS प्रोस्थेटिक्स ऑर्थोपेडिक्स फिजिओथेरपी ॲक्युपंक्चर थेरपी ऑर्थोपेडिक थेरपी बॅचलर ऑफ स्पीच इन हेअरिंग लँग्वेजेस BSc नर्सिंग आणि त्याच्यानंतर वेटरनरी सायन्स ही नीटच्या बेसवर आहे. याच्या व्यतिरिक्त जर जायचं असेल तर तुम्ही आयसर चॅप्टर टेस्ट द्या, नेक्स्ट नावाची परीक्षा द्या, त्याच्यानंतर आयसर चॅप्टर टेस्ट द्या, त्याच्यानंतर TFR टाटा इन्स्टिट्यूट फंडामेंटल रिसर्चची ह्या वर्षीपासून बॅचलर ऑफ सायन्स 4th इयरची सुरू झालेला आहे, तो एक करा. हे जर काहीच जर नाही मिळाले तर सगळ्यात बेस्ट ऑप्शन आहे BSc सारखं ऑप्शन्स नाही, पण BSc ला ऍडमिशन घेताना टार्गेट ठेवा की मला पोस्ट ग्रॅज्युएशन एक IISc IIT TFR आयसर नायसर NRBI त्याच्यानंतर एम्स दिल्ली NCL अशा ठिकाणी मला PG करायचं. त्याच्यासाठी BSc ला ऍडमिशन घेताना एक गेट आहे, जाम आहे, TFR लाईफ सायन्स आहे, जेस आहे. हे 4 परीक्षा कुठल्याही द्या, त्याच्यातून चांगला स्कोर मिळवा आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन साठी अशा नॅशनल इन्स्टिट्यूटला ऍडमिशन घ्या. ओके, Thank you, sir. I hope our audience has got answers of all their career-related questions. Now I request to our team member, Mansi More, to give formal vote of thanks. Can you give me 1 minute? I would like to appreciate something for Santosh sir. Yes, sir, surely. हो. नमस्कार संतोष सर. नमस्कार. नरेंद्र किशन सुपरवायझर. तुमच्या नमस्कार. सेशन आमच्या स्टुडंटसाठी इट वॉज व्हेरी युजफुल, खूप इन्फॉर्मेटिव्ह होता. आपण बरेच वेगवेगळ्या फील्डमध्ये आणि डायरेक्शनमध्ये मुलांना कसं फ्युचर आणि कॅरियर बनवू शकतात खूप चांगल्याने गायडन्स केलेला आहे. आय एम व्हेरी हॅपी विथ दॅट अँड आय एम शुअर की आमच्या मुलांना त्याचा खूप फायदा होईल. मला 2 ऍडिशनल गोष्टींचा उल्लेख करायचा आहे की तुम्ही खूपच चांगल्याने ते पॉइंट मेन्शन केलेले आहे. ऑफकोर्स तुम्ही सगळे चांगले केले, पेशंटली त्यांचे सगळे क्वेश्चन आन्सर केलेले आहे. 1 इज IIT. आता सायन्स मुलांच्यासाठी IIT आहे, दे आर अवेअर, बट जे नॉन सायन्स म्हणजे आर्ट्स कॉमर्स साठी आहे त्यांच्यासाठी यू हॅव ओपन नाईस विंडो अँड ऑपॉर्च्युनिटी की ते तिकडे पण आपला कॅरियर किंवा फ्युचर बघू शकता. सो दॅट वॉज व्हेरी नाईस पॉइंट यू हॅव मेन्शन्ड as a guidance to our students. And one more which I appreciated was IIMC, mass communication. तर हे जे आपण उल्लेख केलाय, they were very nice, very useful for our student. Thank you very much sir for that. Thank you sir. सर मी अजून एक सजेशन करेल. विद्यार्थी जर चांगला बॉडी लँग्वेज चांगली असेल तर त्याला RSUचं पण एक ऑप्शन तुम्ही द्या. ओके, रक्षा शक्ती युनिव्हर्सिटी हे गांधीनगरचं, ही टॉप लेवलवरचं RSU रक्षा शक्ती युनिव्हर्सिटी www.rsu.ac.in ही त्याची वेबसाईट आहे. ठीक आहे. आणि तिथं करस्पॉन्डिंग कोर्सेस पण त्या ठिकाणी चालतात. आणि दुसरी गोष्ट, आपल्या कॉलेजच्या विद्यार्थ्याला NPTEL.ac.in ही एक वेबसाईट आहे. याच्यामध्ये ऑनलाईन काही कोर्सेस IIT आणि ISC आर्ट्स असेल, कॉमर्स असेल, सायन्स असेल, इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी विद्यार्थ्यांना तिथं ऑनलाईन शिक्षण घेण्याची संधी आहे आणि त्याचं सर्टिफिकेट पण त्या ठिकाणी दिला जातं. शुअर सर, आम्ही नक्कीच आपल्या पॉइंटची नोट करू आणि मुलांना गाईड करू सर. ओके, थँक्यू व्हेरी मच सर. Okay, thank you. Thank you, Kishan sir, and thank you, Prathamesh. Before I start with vote of thanks, I will request our audience to fill the Google feedback form, for which the link is given in the chat box. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this such a beautiful a science FYG Science. On behalf of Science Association, would first and foremost like to thank up today's guest of honor and speaker, Shri Santosh Karle Undagaonkar sir, for his valuable and extremely beneficial career guidance lecture. We would like to thank our principal, Dr. Madhav Rajwade sir, who encouraged us to organize such a useful guest lecture on career guidance. We would like to thank all our dignitaries present here for spending their valuable time with us. We would like to thank all the Science Association teachers for guiding and organizing such a fabulous event. We would also like to thank our enthusiastic participants who were patient listeners. Last but not the least,
We thank all our technical support staff and all our viewers. Once again, I thank you all for your attention.